Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो। इस प्यारे वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु की हुजूरी में आ सके इस मंगलवार की सभा में, जबकि प्रभु आके हमसे बातचीत करते हैं। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा में हम आगे बढ़े। जीवन के वाणी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तहे दिल से शुक्रगुजार है प्रभु इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह कि आपकी हुजूरी में आ सके, आपका धन्यवाद कर सके प्रभु, आपका गुणानुवाद कर सके प्रभु, क्योंकि आप ही एक लौते वाहिद खुदावन है जिसने हमें फजल दिया प्रभु कि हम आपकी समीपता में आ सके, ताकि आपको खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ एक कम्युनियन कर सके प्रभु, आपके मांस को खा सके, आपके लहू को पी सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है ना जीवन उसी का है। ओ खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह इस मुबारक कलाम के लिए, इस मुबारक वचन के लिए प्रभु, और इस प्यारे रीति से खुदा हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु। ओ खुदा आपका नाम मुबारक हो। और मैं चाहता हूं मेरी प्रार्थना प्रभु जितने लोग हमारे साथ वे ऑफ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु उन सबको बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह, और खुदावंद सब अपनी जगह पे प्रभु आशीष हो सके। बीमारों के लिए खुदावंद खासतौर से बेटी जेनेसिस के लिए प्रभु आप उस बच्ची को संपूर्ण चंगाई दें प्रभु यीशु मसीह। और मेरी प्रार्थना खुदावंद और मेरे भाई बहन खुदावंद जो किसी बीमारी या किसी परेशानी में पड़े प्रभु आप उनको वहां से आजादी बख्शे प्रभु यीशु मसीह। आपने मुझे स्वस्थ किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। आप आए खुदावंद एंड मॉर्फी हो खुदावंद, हमारे पास्टर की देह को आप ले प्रभु और हमसे बातचीत करें प्रभु। आपका नाम की तारीफ सदा सर्वदा होती रहे। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन आमेन हालेलुया। Song number 105. In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sins. Oh, I love that man from Galilee. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh Christ, the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Once again. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
A publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin, and a deep peace placed within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee. Hallelujah. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Nicodemus came by night to know the way of right. He asked the Son of Man, what must he do? These words he said to him, he must be born again by the Spirit of that man from Galilee. Hallelujah! Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. The woman at the well, he all her sins did tell, how 5 husbands she had at that time. She was forgiven of every sin, and a deep peace placed within. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Hallelujah. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Once again. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Yes, I love that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee. Hallelujah. Amen. आप में से कितने उस मसीह यीशु से प्रेम करते हैं जो आज के युग में बादल में प्रकट हुए, जिन्होंने अपना चेहरा आपको और मुझे दिखाया? उन्होंने अपना चेहरा मोड़ा नहीं, लेकिन आज उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। मूसा के जमाने में तो पीठ थी, लेकिन आज ये जमाना है जब उसने अपने आप को एक चेहरे में होते हुए दिखाया। इस बादल में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। ये मल्कीशेदेक कौन है? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे उस कोरस को गाने के लिए। Only believe all things are possible before we enter the word. मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा अपने अजीज भाई जोशुआ से कि सामने आए। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My
impossible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen. Thank you, Lord. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं for this evening which you gave to us. शाम के लिए जो आपने हमें बख्शी है। Under your blood we come, आपके लहू के नीचे हम आते हैं, desiring a sincere time of fellowship with you tonight. चाहते हैं गंभीर समय सहभागिता का आपके साथ आज शाम, As we submit ourselves into hands of praise, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सुपुर्द करते हैं। our needs are before you. हमारी जरूरतें आपके सामने हैं, Please supply them, Lord, कृपया करके उन्हें मुहैया कीजिए प्रभु। as we wait upon thee. जबकि हम आप पे तकिया करते हैं, Talk with us from thy word. अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करें। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं, In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Let's open the Bibles. आइए हम बाइबल को खोलेंगे, We turn to Hebrews 7. निकालेंगे इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, verses 1 to verse 3. पहली से तीसरी आयत तक। For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Sweet Jesus, please open thy word for us, is my prayer. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. Amen. We can be seated. हम सब बैठ सकते हैं। We straight away move into the message. सीधा सा संदेश में आगे बढ़ेंगे, And I'm now reading from Matthew 26:26. और अब मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 26:26 से, which the prophet is reading here. जिसको नबी यहाँ पढ़ रहे हैं। So we start from paragraph 65. तो हम 65 अनुच्छेद से चालू करते हैं। Now let's turn again to Matthew 26:26. He says, वो ये कहते हैं, आइए हम फिर से निकालें मत्ती 26:26। then he reads, then cometh Jesus with them unto a place called Golgotha or Gethsemane, and said unto his disciples, sit ye here while I go yonder to pray. तब वो बोलते हैं, वहां पर ये पढ़ते हैं मत्ती 26 उसकी 26वीं आयत। तब वो यीशु उनके वहां पर पहुंच के एक ऐसे स्थान पे आया जिसको कहते हैं गोलगोथा, मेरा मतलब है गतसमनी, मेरा मतलब है, और अपने चेलों से कहा, तुम यहीं ठहरे रहो, यहीं बैठो, जबकि मैं आगे जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। Then he says, I believe I got a wrong scripture. तब वो ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ शायद मेरे को गलत आयत मैंने निकाल ली है, He requests somebody to read it, और वो किसी से आग्रह करते हैं उसे पढ़ने के लिए, and then they get the scripture. और फिर उन्हें वो आयत मिल जाती है। And as they were eating, Jesus took bread and blessed it. और जब वो खा रहे थे, यीशु ने रोटी को लिया और उसे आशीष मांगी उस पे। What was it? ये क्या था? The battle was over. युद्ध समाप्त हो चुका था। Break it and gave it to his disciples. उसे तोड़ा और अपने चेलों को देकर कहा, And said, take and eat, this is my body. कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। See that Melchizedek?
देखा आपने इस मलकीसेदेक को? Hundreds of years before, when he met Abraham after the battle was over, सैकड़ों साल पहले जब उसकी मुलाकात अब्राहम से हुई थी, जब युद्ध समाप्त हुआ था, he gave bread and wine. उसने रोटी और दाखरस दिया था। And here Jesus gives the disciples after his hard battle was over. और यहाँ यीशु अपने चेलों को ये देते हैं जब उनका बहुत ही कठोर युद्ध समाप्त हो रहा है। He gave them bread and wine. उसने उन्हें रोटी और दाखरस दिया। Watch, watch the future coming. देखिए देखिए आने वाली आमद को, This needs भविष्य a में। little clarification. इसमें थोड़ा समझाने की जरूरत है। Bread and wine was served after the battle was over. जो रोटी और दाखमधु है वो तब परोसा गया जब युद्ध समाप्त हो गया। Now try to understand. ऐसे समझने की कोशिश करिए। That same Melchizedek which was God in theophany form वही खुदा जो कि खुदा, वही मलकीसेदेक जो कि खुदा थियोफनी रूप में था, now comes in flesh. अब वो शरीर में आता है। And now this is our Lord Jesus Christ. और अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। And as Jesus Christ, he breaks bread before his disciples. और यीशु मसीह होके वो अपने चेलों के सामने रोटी को तोड़ते हैं। We need to understand हमें ये समझना जरूरी है, that time Melchizedek gave bread and wine after Abraham had finished the battle and won it. उस समय जब मलकीसेदेक ने रोटी और दाखमधु दिया था, वो तब था जब अब्राहम ने युद्ध को खत्म कर लिया था और उसे जीत गया था। Now this time our Lord Jesus is serving bread and wine. परंतु इस दफा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस दे रहे हैं, Some battle is over. कोई ऐसी लड़ाई है जो कि पूरी हो चुकी है। Now you will say, brother, but then he later on went to die on the cross and on Easter morning he rose up. That's when he had the victory. पर आप ये कहेंगे भाई वो तो आगे चल के इसके बाद गए क्रूस पे और क्रूस पे चढ़े, अपने जान को दी और देने के बाद मर के जी उठे तीसरे दिन और फिर ईस्टर की सुबह जब जी उठे, वो हम कहेंगे कि जब उसने जीत को हासिल किया। But no, पर मैं कहूंगा नहीं। if you read the message carefully here, अगर आप संदेश को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ें, after his hard battle was over, जबकि उनकी कठोर जो युद्ध था, उनका जो लड़ाई थी वो पूरी हो गई, not disciples, चेलों की नहीं but his hard battle, परंतु उनकी अपनी लड़ाई, when it was over, जब वो खत्म हो गई, he gave them bread and wine. उसने उन्हें रोटी और दाखरस दिया। That battle was over even before he served the communion to his disciples. वो लड़ाई यहाँ तक कि जब उन्होंने प्रभु भोज परोसा अपने चेलों को, उससे पहले ही समाप्त हो गई थी। Now what kind of a battle was that? तो अब किस किस्म की लड़ाई ये थी And what kind of victory did he won? और किस किस्म का युद्ध उन्होंने, किस किस्म की जीत उन्होंने हासिल करी? Turn with me to John मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना and chapter 14. और उसका 14वां अध्याय। Rather chapter 16. बल्कि 16वां अध्याय। These are those chapters which he spoke when he served the communion. ये वो अध्याय हैं जब उन्होंने उनको तब बोला जब उन्होंने प्रभु भोज को परोसा। And this is the time when his ministry was coming to an end. और ये वो समय था जब उनकी सेवकाई समापन पे आ रही थी। Notice carefully the scripture which we are going to read. गौर करिए ध्यानपूर्वक जिस पवित्र शास्त्र की आयत को हम पढ़ेंगे। In chapter 13 we have feet washing. 13वें अध्याय में हमारे पास प्रभु भोज वो पैर का धोया Then जाना है। comes chapter 14, फिर आता है 14वां अध्याय, chapter 15 15वां अध्याय and 16. It all is in continuity with that communion service. और फिर 16वां अध्याय। और आप पाएंगे कि ये जो है ये पूरा उस प्रभु भोज के साथ लगातारिता में ही चल रहा है, उसकी सभा के साथ। So you can understand it is connected with the communion. तो आप ये समझ पाएंगे कि ये संबंधित है, जुड़ा हुआ है उस प्रभु भोज के साथ। Now notice in John 16 rather, अब गौर कीजिए यूहन्ना 16 में, बल्कि I am reading verse 33. मैं 33वीं आयत पढ़ रहा हूँ। These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. आमीन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Not going to. आगे जीतूंगा नहीं, I have already won it. मैंने पहले से उसे जीत लिया है। आमीन। There was a battle that was won.
एक ऐसा युद्ध था जो कि जीता जा चुका था। Even before the bread was broken in that room, यहाँ तक कि ठीक उस रोटी के तोड़े जाने से पहले जो उस कमरे में तोड़ी गई, he had already been given authority. उन्हें पहले से अधिकार मिल चुका था। He said, all power in heaven and earth has been given unto me. उन्होंने कहा कि हर एक सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी की मुझे दे दी गई है। And he had overcome the world. और वो पूरी पृथ्वी दुनिया पे संसार पे जय प्राप्त कर चुके थे। And he said, you be of good cheer. और वो कहते हैं कि तुम ढांढस बांधो, I have overcome the world. मैंने तो संसार को जीत लिया है। So there was some kind of battle तो फिर किसी किस्म की लड़ाई थी had already been won. जो जीती जा चुकी थी। He had already overcome the world. उन्होंने पहले से दुनिया पे संसार पे जीत हासिल कर ली थी। And he was giving the communion to those who were the beneficiaries of his victory. Amen। और वो जो है प्रभु भोज उनको परोस रहे थे जो कि उनकी प्रभु यीशु मसीह की जीत के लाभ उठाने वाले थे। They hadn't fought that battle, उन्होंने खुद उस युद्ध को नहीं लड़ा था, but Christ had already fought a battle. परंतु मसीह ने पहले से युद्ध को लड़ लिया था। And you and I need to और understand, आपको और मेरे को समझना जरूरी है, when Christ fought that battle, जब मसीह ने उस युद्ध को लड़ा, where did he fight it? कब उन्होंने उसको लड़ा, कहाँ लड़ा? It was in a spiritual world. ये एक आत्मिक संसार था। Now this is something deep. अब ये थोड़ा गहरा है। That battle which he won वो युद्ध जो उन्होंने जीता was not in a flesh realm, वो शरीर या मांस वाले अय्याम में नहीं था, but he had won that battle in a spiritual realm. परंतु उन्होंने उस लड़ाई को आत्मिक अय्याम में जीता था। And now he had won that battle. और अब वो उस लड़ाई को जीत चुके थे। Where did he win that battle? कहां पर उन्होंने इस लड़ाई को जीता? In his prayers, अपनी प्रार्थनाओं में होके, in his life which had visions. अपने उस जीवन में जिसमें दर्शन आते थे। He had conquered the human part. उन्होंने उस इंसानी तत्व को, इंसानी हिस्से को के ऊपर जीत प्राप्त की थी। Not as I will, but as thou wilt. मेरी इच्छा नहीं परंतु जैसी आपकी है। He had come to that perfect state. वो उस सिद्ध अवस्था तक आ पहुंचे थे। Brought his body to that. और अपने शरीर को उस सिद्ध अवस्था तक लेके आ पाए थे। Though born by a woman, जबकि स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुए, but he brought his body under subjection परंतु उन्होंने अपने शरीर को मातेती में किया, to the fullness of the word. वचन की परिपूर्णता के अंतर्गत And नीचे। all that the Father had told him, और जो कुछ पिता ने उनसे कहा था, he had fulfilled it to the letter. उन्होंने शब्द व शब्द उसे पूरा किया था। That's the reason he won that victory. और यही कारण था कि वो उस जीत को हासिल कर पाए। He had already seen his dying. उन्होंने पहले से अपने मरने को देख लिया था। आमेन। He had already seen his resurrection. उन्होंने पहले से अपनी पुनरुत्थान को देख लिया था। He had walked in a dimension much faster than this. वो एक ऐसे अय्याम में चल के आ चुके थे जो कि बहुत तेज गति का है यहाँ के बनिस्बत। In that dimension, he had already seen the future. उस अय्याम में उन्होंने पहले से भविष्य को देख लिया था। He had already know how he will go to Jerusalem. उन्हें पहले से पता था कि कैसे वो यरूशलेम जाएंगे, How will the sinful people will kill him. और कैसे दुष्ट पापी लोग उन्हें मारेंगे, And on the third day he will rise again. और तीसरे दिन वो जी उठेंगे। He had already seen that. उन्होंने पहले से इसको देख लिया था। He had already gone through all that in that realm. वो तमाम उन चीजों में से होके गुजर चुके थे उस दूसरे अय्याम में, And he had overcome everything. और उन्हें उसमें होके सब चीज पे जीत हासिल कर ली थी। And now he was in flesh. और अब वो शरीर में थे। Back in हालेलुया। this dimension. इस अय्याम में Already winning the battle in that dimension. पहले से जीतते हुए उस लड़ाई को उस अय्याम में, And when he finished the battle in that dimension, और जब उन्होंने लड़ाई को जीत लिया उस अय्याम में, conquered every power. हर एक सामर्थ, हर एक शक्ति पे जीत हासिल करी, And potentially he had already won it. और संभावित रूप में उन्होंने पहले से उसको जीत लिया था। It is then he says, Father, now glorify thy son. ये तब था जब उन्होंने बोला, पिता अपने पुत्र की महिमा कर, Because क्योंकि the glory I had with you वो महिमा जो मेरी तेरे साथ थी since the foundation of the world. जगत की नींव रखने से पहले। The hour has come, Father. पिता घड़ी आ पहुंची है, I have manifested thy name मैंने तेरे नाम को प्रकट किया है unto the men which thou gavest me. उन मनुष्यों के सामने जो तूने मुझे दिए। And he had seen the future. उन्होंने भविष्य को देख लिया He था, had finished his work. उन्होंने अपने काम को पूरा किया था, And after finishing that work, और उस काम को पूरा करने के बाद he had even gone through all that which was laying in future. वो यहाँ तक कि उस
तमाम में से गुजर के होके आ चुके थे जो अभी भविष्य में होने वाला था। You see, your winning the battle is walking in the thoughts which God thought for you. आप पाएंगे आपका लड़ाई का जीतना वो ये है कि आप उन विचारों में चल पाए जो विचार खुदा के आपके प्रति हैं। And Christ walked in the thought which the Father had for him to such a reality, knowing that I am the lamb that was slain. He walked in that thought, went through that thought, really acted in that thought, won the battle in that thought, and came back in this realm, winning that battle. Amen. आप पाएंगे कि मसीह जो हैं इतने ज्यादा पिता की मंशा के अनुसार उस अय्याम में चले और ये जानते हुए कि मैं ही वो बर्रा हूं, मैं ही वो मेमना हूं, वो इतना ज्यादा उस अय्याम में करीबी से चल पाए और आगे बढ़े इस हद तक कि वो एक हकीकत उनके लिए बन गया। उस अय्याम में वो आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़ के उस जीत को हासिल किया, उस युद्ध को जीता और वहां पर जीतने के बाद इस अय्याम में आके ऐसे बोल रहे हैं कि वो उस लड़ाई को जीत चुके हैं। He had already walked in Genesis 1. वो पहले से उत्पत्ति 1 में चल के आ चुके थे। Genesis 2 crucifixion would be on Friday. उत्पत्ति 2 क्रूस पे चढ़ाया जाना तो फ्राइडे को होगा। But he had already gone through a Genesis 1 crucifixion. हालेलुया। पर वो पहले से उत्पत्ति 1 वाले क्रूस पे चढ़ाए जाने में होके आ चुके थे। He had already gone through that in that realm. वो उसी अय्याम में से होके जा चुके थे। What had already happened there was going to happen in future. जो कुछ वहां हुआ था वो भविष्य में होगा। And he finished the battle there. और उन्होंने युद्ध को वहां पूरा किया। He finished the battle in Genesis 1 realm. उन्होंने उत्पत्ति 1 के अय्याम में युद्ध को पूरा किया। He had finished that act. उन्होंने उस कार्य को, उस काम को वहां पूरा किया। And now he was only bringing that act in present tense. और अब वो केवल उस जो काम था उस क्रिया को वहां से निकाल के वर्तमान काल में लेके आ रहे थे। He knew he's going to die. वो जानते थे कि वो मरेंगे And he knew he's going to rise again. और वो जानते थे कि वो जी उठेंगे। He had already gone through all that. वो तमाम उन चीजों से होके गुजर चुके थे। And after going through all that, और उस तमाम चीजों में से गुजरने के बाद then he takes bread तब वो रोटी को लेते हैं। and हालेलुया। breaks it. और उसे तोड़ते हैं। ग्लोरी। Even before his body was broken, यहाँ तक कि इससे पहले उनकी रोटी, उनकी देह टूटी, he broke that bread. उन्होंने रोटी को तोड़ दिया। Why did he break the bread? उन्होंने रोटी को क्यों तोड़ा? Because in Genesis 1 realm, the body had been broken. क्योंकि उत्पत्ति 1 अय्याम में देह पहले से तोड़ी जा चुकी थी। To signify that act ताकि उस क्रिया को दिखाया which he जाए had finished in Genesis 1 realm. जिसको उन्होंने पूरा कर लिया था उत्पत्ति 1 वाले अय्याम में। Now he brings it on the earth अब वो उसको पृथ्वी पे लेके आते by हैं picking up bread रोटी को उठाने के and द्वारा breaking the bread. और उसे तोड़ने के द्वारा। What God finished in heaven as intercessory work, now he comes down in this age and breaks the seals. आमीन। जो कुछ खुदा ने उस अय्याम में मध्यस्थ वाले कार्य के रूप में पूरा कर लिया वो नीचे उतर के आता और यहाँ पर मोहरों को तोड़ता है। It says when the last name is dipped in, वो कहते हैं कि जब आखिरी नाम डुबो दिया जाता है then he leaves his intercessory post अब वो अपने मध्यस्थ के कक्ष को छोड़ता and है then he comes down. और वो नीचे उतर के आता Then है। why did he come in 963 since the last soul is still to be saved? क्योंकि तो फिर वो क्यों 1963 में ही आ गया जबकि आखिरी जो रूह है वो बचना अभी बाकी रह गई The है। thing is, it has already happened बात यह है कि ये पहले से घट चुका है in that realm. उस अय्याम He में। finished it in that realm. उसने उस अय्याम में उसको पूरा कर Then लिया। he came down वो नीचे उतरा with a broken book, एक टूटी हुई पुस्तक के द्वारा तोड़ी opened the हुई seals, मोहरों को खोल दिया broke the bread, और रोटी को तोड़ दिया and gave it to his people. और अपने लोगों को मुहैया किया। Take it, इसे ले लो eat और it. इसे खा लो। This is my body. ये मेरी देह है। I have won the battle. मैंने युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया। That's why इसलिए before the breaking of the seals, मोहरों के तोड़े जाने से पहले the announcer said, घोषणा करने वाले ने कहा the lion has prevailed. आमीन। सिंह जीत चुका है। The lion of the tribe of Judah, यहूदा के गोत्र का सिंह he has wrestled and prevailed. उसने युद्ध लड़ा है, कुश्ती लड़ी है और वो जीत चुका है। After his battle was over, जब उसका युद्ध समाप्त हो गया था then he breaks the bread तब उसने रोटी को तोड़ा and gave it to his disciples. और अपने चेलों को दिया। We have to understand, हमें समझना जरूरी he है had finished that battle in that realm. उसने उस लड़ाई को उस अय्याम में पूरा कर लिया था And now he is going to bring what he has done there in this realm. और अब उस चीज को जो कुछ उसने उस अय्याम में किया है अब इस अय्याम में लेके आएगा। In fact, Hannah and Caiaphas are too late. वास्तविकता में
हन्ना और कहवा तो बहुत बेचारे पीछे रह गए, देरी हो गई उन्हें। Devil is too late. शैतान बहुत पीछे रह गया, Because he already finished that and went in the future. क्योंकि उसने सब कुछ पूरा करके भविष्य में प्रवेश कर लिया In है, that realm. उस अय्याम में। And now he's just walking through those thoughts which had already happened. और वो केवल उन विचारों में ही होके चल रहा है जो कुछ पहले से घट चुके थे। He's walking where he had walked before. वो उन जगहों पे चल रहा है जहां पर वो पहले से चल के आ चुका है। He had already walked in those thoughts. वो उन्हीं विचारों में चल रहा And now है। when those thoughts are coming in flesh, और अब वो जो विचार शरीर में आ रहे हैं, when Genesis 1 is coming to Genesis 2, जब उत्पत्ति 1 उत्पत्ति 2 में आ रहा है, once again there is an Adam एक बार फिर से आदम है lying in the dust. जो कि मिट्टी में पड़ा है। He knows this is that Adam that's going to lie in the dust. उसने कहा, वो जानता है कि ये वो आदम है जो कि मिट्टी में पड़ा रहेगा। So he goes to that cross तो फिर वो क्रूस पे जाता है and he's lying in that grave. और वो उस कब्र में पड़ा है। But as God breathed that breath of life और आप जानते हैं जैसे खुदा ने वो जीवन के श्वास को फूंका था in the nostrils of that first Adam, उस पहले आदम के नथनों में, and he became a living और soul, वो जीवता प्राणी बन गया that था। same quickening power, वही जिला देने वाली That सामर्थ, same Holy Ghost, हालेलुया, वही पवित्र that same pillar of आत्मा, fire, वही आग का खंभा, that same cloud, वही बादल which is the theophany of God, जो कि खुदा का थियोफनी that है, same Holy Ghost वही पवित्र आत्मा is going to breathe in this body, वो इस शरीर में भी अपने श्वास को फूंका। and I'll rise the third day. और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। Even before dying, he said, इससे पहले मरने से भी पहले उसने कहा, destroy this temple, इस मंदिर को धराशायी करो and I will raise it in 3 days. और 3 दिन में मैं इसको खड़ा He करूंगा। had already seen his resurrection. उसने पहले से अपने पुनरुत्थान को देख लिया था। He was timing his thoughts. वो अपने विचारों को समयबद्ध कर रहा था। He knew the time has come to break bread. उसे मालूम चल गया था अब समय आ गया रोटी तोड़ने का। He knew the time has come to go to the cross. उसे पता लग गया अब समय आ गया क्रूस पे जाने का। Throughout that trip, you find he's not saying anything. आप पाएंगे उस पूरी यात्रा में वो कुछ नहीं बोल रहा। The reason is he has already done everything. कारण ये है उसने सब कुछ कर दिया है। You know what? आप जानते हैं क्या? Pilate said, पिलातुस ने कहा, I have a power to leave you and a power to destroy you. मैं पिलातुस ने तो ये कहा कि मेरे पास सामर्थ है तेरे को छोड़ने की और तेरे को बर्बाद करने की। He replied to Pilate, पिलातुस को उन्होंने जवाब दिया, if it was not given from above, अगर ये तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता, somebody from above was permitting all that. हालेलुया, कोई शख्सियत थी जो ऊपर से सबको होने दे रही थी। He knew why this all was happening. वो जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। It was not like a persecution for him. ये कोई सताओ की मानंद नहीं था उसके लिए। He was not going through a boycott. वो कोई बहिष्कार के अंतर्गत नहीं चल रहा था। That boycott had already happened in that first realm. वो बहिष्कार पहले से उस पहले या में हो चुका था। He had already gone through that. वो केवल उसमें से होके गुजरा था And he had already won the battle. और उसने वहीं पर जीत हासिल कर ली थी And he had seen the future. और उसने भविष्य को देख लिया था। That's why when that real boycott came, इसलिए जब वो वास्तविक बहिष्कार आया, when the religious power, जब धार्मिक शक्ति Hannah and Caiaphas, हन्ना और कैफा, with the political power, राजनीतिक शक्ति के साथ, that is Pilate, जो कि पिलातुस है, and when the demonic power, और पिशाचिक शक्ति, Satan entering Judas, शैतान स्तुति में घुसा, when all those three powers united जब ये 3 सामर्थ्य एक हुई to become a pale horse, ताकि एक पीला घोड़ा बने, to bring in death, ताकि मृत्यु को लेके आए, he knew, वो जानता था I can never die. मैं कभी नहीं मरूंगा, I can never die. मैं कभी नहीं मर सकता, I'm dying and coming back again. मैं मर के फिर से वापस आ रहा हूँ। I am that prophet like unto Moses, हालेलुया, मैं उस मूसा सरीखा नबी हूँ whose graves cannot be found. जिनकी कब्रें कभी मिलती नहीं, Because he died and just went through an act. क्योंकि वो मरा और एक क्रिया में से होके गुजरा, He died and rose again. वो मरा और जी उठा फिर से, And I am that prophet like unto Moses, और मैं ही वो नबी हूँ मूसा सरीखा, who has come to bring a deliverance. जो कि नीचे उतर के आया ताकि एक छुड़ाती लेके आए। I have walked through those thoughts. मैं उन विचारों में से चल के आया हूँ। I know what's going to happen. मैं जानता हूँ कि क्या होगा। I have won the victory. मैंने उस जीत को हासिल किया I है, have won that battle. मैंने उस युद्ध को जीत लिया I have है, finished it. मैंने उसे पूरा किया है। I am not breaking bread to go in the battle. हालेलुया, मैं रोटी लड़ाई में जाने के लिए नहीं तोड़ा, I will otherwise break the types. नहीं तो तस्वीरें टूटेंगी। The bread was broken after the battle was over. जो रोटी है वो तब तोड़ी गई जब युद्ध जीत लिया गया। If I could say it in time element, अगर मैं समय के तत्व में इसको बोल पाऊं, that would have been Thursday night. ये तो
थर्सडे की रात होती, because the next day he was crucified, क्योंकि अगले दिन उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, which we call as Good Friday. जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। The battle was won even before Thursday. आमेन। जो युद्ध था यहाँ तक कि थर्सडे से पहले जीत लिया गया था। It was all finished there. ये वहीं पर सब समाप्त हो चुका था। On Tuesday he was opening the seals, ट्यूसडे के दिन तो वो मोहरों को खोल रहा था, and on Thursday और थर्सडे he's announcing to them, वो उनको घोषणा करके बता the रहा battle है is over. युद्ध समाप्त हो गया, I wouldn't have brought the book to you. और मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लेके आया I हूँ। would have preached the seals in word form. मैंने तुम्हारे मोहरों को वचन रूप में प्रचार किया है। I wouldn't have preached the seals in word form if I hadn't won the battle. आमेन। मैंने वचन रूप में मोहरों को प्रचार नहीं किया होता अगर मैंने युद्ध को जीत नहीं लिया I've होता। already finished it. मैंने पहले से उसको पूरा कर लिया है। What's happening to you, disciples? चेलो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? Be of good cheer. ओ ढांढस बांधो। Shalom. शालोम। Eternal shalom is with you. एक अनंत शालोम तुम्हारे साथ I है। have finished the work. मैंने काम को पूरा किया है। It's the dawning of a new day. एक नए दिन की शुरुआत है। A woman when हालेलुया। she's in travail, जब स्त्री एक गजच्चा की पीड़ाओं में होती है, because her hour has come. ये इसलिए है क्योंकि उसकी घड़ी आ पहुंची है। But when she delivers a man child, और जब वो एक नर बच्चे को पैदा करती है, all that sorrow is turned into joy. तमाम जो मुसीबत और दुख है, पीड़ा आनंद में बदल जाता And I है। will see you again. और मैं तुम्हें फिर देखूंगा। How are you certain, Lord Jesus, that you will see them again? हालेलुया। क्यों, कैसे प्रभु यीशु अब इतना पक्के हैं कि आप उन्हें फिर से देखेंगे? He said, if I should say it like this, उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे कहूं, it's that same faith which told Abraham when he told his servants, I and the lad are going and are coming back. अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि ये वही विश्वास है जिसमें हो के अब्राहम ने बोला उन दासों से कि मैं और लड़का वापस लौट के आते हैं जाके। How will he come back when you're going to slay him? कैसे वो लौट के आएगा जब आप उसे घात करेंगे? He knew God will do something. वो जानता है खुदा कुछ करेगा। The हालेलुया। difference between Abraham and Jesus is Abraham didn't know it, but Jesus, our Lord, he knew everything. जो फर्क ये था अब्राहम और यीशु में, वो ये था कि अब्राहम को मालूम नहीं था कैसे होगा, परंतु यीशु मसीह हमारे प्रभु को सब पता था। Because Abraham had never come through his theophany. क्योंकि अब्राहम अपनी थियोफनी में से होके नहीं आया था। But the Lord Jesus had come through his theophany. परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी थियोफनी में से होके आए Because he थे। had come through his theophany. क्योंकि वो अपनी थियोफनी में से होके आए He थे। knew everything. वो हर एक चीज जानते थे। He knew the end from the beginning. वो अंत से शुरुआत तक पूरा जानते थे। And he had literally walked in their thought और वो वास्तविकता में उस विचार में चले थे and had done all the thing. और पूरे काम को खत्म कर दिया था। So much so I can tell you something. इतना ज्यादा मैं आपको ये बताऊंगा कुछ। He knew वो जानते थे at this step इस कदम पे such and such soldier will spit on me. ये खास फलाना ये सिपाही मुझ पे थूकेगा। At such and such step I will fall. इस खास कदम पे मैं गिर जाऊंगा। His life was full of vision. हालेलुया। उनका जो जीवन था वो दर्शनों से भरा था। At such and such step I will fall. ऐसे से एक कदम मारूंगा, इस खास कदम पे मैं गिर जाऊंगा। And my cross will not fall on the left side, it will fall on the right side. और मेरी जो क्रूस है वो बाईं ओर नहीं परंतु दाईं ओर गिरेगी। Right side. That's right. दाईं ओर। That's right. It fall on the right side. वो दाईं ओर गिरेगी। I'm just giving you a drama. मैं आपको एक ड्रामा खींच के दिखा Then रहा they'll हूँ। call this black man फिर वो इस काले आदमी को बुलाएंगे, Simon the Cyrene, ये शिमोन कुरेनी को, and he's going to pick up my cross. और वो मेरी क्रूस को उठाएगा। And I've even measured the steps और यहाँ तक कि मैं उन कदमों को भी नाप चुका हूँ which Simon the Cyrene is going to walk with me till Golgotha. जो कि वो शिमोन कुरेनी मेरे साथ चलेगा गोलगोता तक। At 12 I will say this. 12 बजे मैं ये कहूंगा। At 1 o'clock I will say this. 1 बजे मैं ये कहूंगा Because I have already done it before. क्योंकि पहले से मैंने इसको कर दिया है। At 3 p.m. I'll shout, 3 बजे मैं चिल्लाऊंगा, Father, I commit my spirit into the hands. हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ। I'll cry with a loud voice, बड़े जोर के शब्द से चिल्लाऊंगा, it is finished. ये पूरा हुआ। What I finished there, I have finished here. जो कुछ मैंने वहां पूरा किया यहाँ भी पूरा कर दिया। And at 3 o'clock when I die, और जब 3 बजे मैं मरूंगा, I don't say the rest. मैं बाकी का कहता नहीं। Let the rest interpret itself. ऐसा हो कि बाकी का अपने आप अनुवाद करे अपना। He knew everything हालेलुया। according to time. वो सब कुछ समय के अनुसार ठीक ठीक जानते थे। Because what was going to happen, क्योंकि जो कुछ होने वाला था he had already walked in that vision. वो पहले से उस दर्शन में चल के आ चुके थे। He had already walked in those thoughts. वो पहले से उन विचारों में होके आ चुके थे। That was the man we had on this earth living in a world called perfect faith. ये वो था मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पे
चल रहा था और जी रहा था, जो कि एक ऐसा याम में रहता था जिसे हम सिद्ध विश्वास कहते हैं। And this is the victory which we have in the world, even our faith. और यही वो जीत है जो हमारी संसार में पाई जाती है, हाँ हमारा विश्वास। So the faith of Christ had revealed to him everything. तो जो विश्वास मसीह का है उसने सब कुछ प्रकट कर दिया था He उस had पे। seen everything. उसने सब कुछ देख लिया था। He had walked in those scriptures. उसने उन पवित्र शास्त्र की आयतों में चल के देख लिया था। And he had finished the work. और उसने काम को पूरा कर दिया था। Then he, after winning that battle, फिर उस युद्ध को जीतने के बाद why did he have to fight a battle? क्यों उसे एक युद्ध जीतना था? He's लड़ना Almighty था। God, वो तो सर्वशक्तिमान खुदा है, but he was also in this flesh, पर वो इस शरीर में भी था, which हालेलुया, came through a woman. जो कि एक स्त्री से आया था। He was taking this flesh now to his theophany. हालेलुया, अब वो इस शरीर को अपनी थियोफनी के पास ले जा रहा था। 3.5 years ministry of Christ was to the world, but during that period, whatever he was doing, and 33.5 years, he was only doing one work, taking this body back to his theophany. आमेन। 3.5 साल की सेवकाई तो मसीह की दुनिया के सामने थी, पर जो 33.5 साल जो यीशु मसीह ने यहाँ जीवन बिताया, वो जो काम कर रहे थे वो केवल एक मुख्य काम था, वो अपनी इस देह को थियोफनी की ओर ले जा रहे थे। He was bringing this body under subjection. वो इस देह को मातेती में लेके आ रहे थे। Through sufferings, he learned obedience. वो दुख उठा उठा के उन्होंने आज्ञा मानने को सीखा। Read Hebrews. इब्रानियों को पढ़िए, All those scriptures are in the Bible. वे तमाम आयतें बाइबल में पाई जाती For हैं। him, nothing was new. उनके लिए कोई भी चीज नई नहीं थी। He had finished that work. उन्होंने उस काम को पूरा कर लिया And था। after finishing that battle, और उस युद्ध को पूरा करने के बाद now he comes before his disciples अब वो अपने चेलों के सामने आते हैं and breaks the bread. और रोटी तोड़ते हैं। Take it, इसे लो eat it, और इसे खाओ, for this is my body. क्योंकि ये मेरी देह है। Why are you giving your body? Are you going to die? आप अपनी देह क्यों दे रहे हैं? क्या आप मरने वाले हैं? Either I've already done it. उन्होंने कहा मैंने पहले से कर दिया। What's going to हालेलुया। happen in future? I've done it. जो कुछ भविष्य में होगा मैंने पहले से कर दिया। This is the blood of my, this is the New Testament in my blood, ये मेरे लहू में नई वाचा है, which is going to be shed for many. जो कि बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। He had gone through all that. वो उन तमाम चीजों में से होके गुजर के आए थे, And now he was bringing it on earth. और अब वो उसको पृथ्वी पे ला रहे थे। That's why he broke the bread. इसलिए उन्होंने रोटी को तोड़ा, That's why he gave the cup. इसलिए उन्होंने प्याले को दिया। He was instituting that, वो उसको स्थापित कर रहे थे, telling them, उन्हें बता रहे थे I've already won the victory. मैंने पहले से जीत हासिल की है। Now it's your time to walk in that vision. हालेलुया, आमेन। अब ये तुम्हारा समय है कि अब तुम इस दर्शन में चलो, Because क्योंकि from henceforth I will not drink of this fruit of the vine. आगे से मैं अभी इस दाग के रस को नहीं पीऊंगा। Today I'm drinking it. आज तो मैं इसको पी रहा Because हूँ I have finished my battle. क्योंकि मैंने अपने युद्ध को समाप्त कर लिया But from है, henceforth I will not, पर आगे को मैं इसको नहीं पीऊंगा until it be fulfilled in my Father's kingdom. जब तक ये मेरे पिता के राज में पूरा ना हो And जाए। when that is fulfilled, और जब ये पूरा हो जाएगा when the last soul is brought in, और जब आखिरी रूह अंदर आ जाएगी, then I will drink it anew with you in my Father's kingdom. तब मैं फिर से तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में पीऊंगा। Brother Branham said, अब्राहम ने कहा after this battle is over, जब ये युद्ध समाप्त हो गया, we are going in that rapture. हम उस रैप्चर में जा रहे हैं। That's when he serves us the communion again. वहां पर वो हमें फिर से प्रभु भोज सर्व करता है। But what happens this time? तो फिर इस दफा क्या होता है? We win the battle. हम युद्ध को जीतते हैं। आमेन, आमेन। Oh, this is deep. ओ ये बहुत गहरा है। आमेन। Let me go a little further. आइए थोड़ा आगे हम चलेंगे। This is not a simple subject. ये कोई साधारण विषय नहीं है, There are many things hidden here. बहुत सारी चीजें यहाँ छुपी हुई हैं। I'd like to show something to you. मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ। After his hard battle was over, जब उनका कठोर बहुत ही गंभीर युद्ध पूरा हो गया था, he gave them bread and wine. उसने उन्हें रोटी और दाखरस दिया। I too got stumped by this line of this prophet, मैं भी हैरान हुआ इस पंक्ति के द्वारा जो कि नबी की थी, because I also used to think, क्योंकि मैं भी यही सोचता था, how come Melchizedek give bread and wine to Abraham after the battle is over, and how come he gives him the bread and wine here even before the battle began? कैसे ये हुआ कि अब्राहम को तो जब उसने युद्ध को समाप्त कर लिया और वो जीत गया तब मलकिसदेक ने रोटी और दाखरस दिया, पर इस दफा यीशु मसीह में होके वो पहले युद्ध चालू होने से भी पहले वो उन्हें रोटी और दाखरस दे रहा है। Then I understood, तब मुझे समझ में आया a battle was over. एक युद्ध
समाप्त हो चुका था। Amen. Even God before bless. he broke that bread ठीक इससे पहले कि उसने रोटी को तोड़ा and gave it to his disciples. और उसने अपने चेलों को दिया, When he decided that sign of Aquarius, जब उसने वो एक्वेरियस की के चिन्ह को ठहराया, when that super conjunction took place, जब वो महान समझोड़ घटा, and then he brought that sign leading to a room. और तब वो उस चिन्ह को लेके आया जो अगुवाई कर रहा था उस कमरे में। He had already finished the battle उसने पहले से युद्ध को समाप्त कर लिया था and he was giving them the announcement. और उनको उसकी वो घोषणा दे रहा था। Be of good cheer. ढांढस बांधो, You'll have a lot of tribulation in this world. No, I know दुनिया that. में तो तुम्हें बड़े कष्ट होंगे, मैं जानता हूँ, But I have overcome the world. पर मैंने संसार को जीत लिया है। I'm giving you the result even before it has come out. आमीन। मैं तुम्हें परिणाम इससे पहले निकले पहले से दे रहा हूँ। You have overcome. You have won. तुम जीत चुके हो, तुम जीत गए And I have overcome it for you. और मैंने तुम्हारे लिए उसको जीता है। And here Jesus gives the disciples, after his hard battle was over, he gave them bread and wine. और यहाँ पर यीशु अपने चेलों को देते हैं रोटी और दाखरस, जब उनका कठोर युद्ध समाप्त हो चुका था। After explaining that, उसको समझाने के बाद then he says, watch the future coming. देखिए देखिए भविष्य में आने वाली चीज को। That coming was over. वो आमद समाप्त हो चुकी थी And the Son of Man had accomplished the work of that coming. और मनुष्य के पुत्र ने उस आमद के काम को पूरा कर लिया था। Now it's coming for another coming. अब एक और आमद के लिए आ रहा है And before that coming can take place, और इससे पहले कि वो आमद घटे, where he will drink it again. जहां पर वो उसे फिर से पिएगा, Between that time, उस समय के बीच he में tells something to his वो disciples. अपने चेलों को कुछ बोलता है And he took the cup और उसने प्याला लिया and gave thanks और धन्यवाद दिया and gave it to them, saying, drink ye all of it. और उन्हें दे के कहा कि इस बार पूरा पी लो, For this is my blood of the New Testament, which is shed for sins and remission of sins. क्योंकि ये मेरे लहू में नई वाचा के लिए है जो कि बहाया जाता है गुनाहों की माफी के लिए। But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि मैं फिर अब आगे को इस दाख के रस को ना पीऊंगा जब तक के उस दिन तक के मैं फिर से अपने पिता के राज में से ना पीऊं। We are in the battle now. हम अब युद्ध में हैं। Just try to understand. समझने की कोशिश करिए। Now he's explaining we are in a battle now. अब वो समझा रहे हैं कि अब हम एक युद्ध में हैं। Not him. वो नहीं है, प्रभु नहीं है, He has finished it. उन्होंने तो उसे पूरा कर लिया। Now we are in the battle now. अब हम युद्ध में हैं। We are after our fallen brother हम अपने के पीछे हैं that God before the foundation of the world saw and predestinated unto eternal life. जिसे खुदा ने जगत की नींव रखने से पहले देखा और अनंत जीवन के लिए पहले से नियुक्त कर दिया। And the things of the world has got him caught up in a whirlwind. और जो दुनिया की चीजें हैं उन्होंने उसको एक बवंडर में पकड़ लिया है। He's out into societies and classes. वो तमाम विभिन्न समाजों में और विभिन्न श्रेणियों में फंसा है। Him and his wife वो और उसकी पत्नी walking up and down the streets, और गलियों में सड़कों में चलता है smoking and drinking and carousing. और स्मोक करता है, धूम्रपान करता है और पीता है शराब को और उछल कूदता है, Trying to find peace. और शांति ढूंढने की कोशिश में है। And the Spirit of Christ in us, और मसीह का आत्मा हमारे अंदर as it would be in Abraham, जैसा अब्राहम में था, we are gone after him हम उसके पीछे जाते with हैं all the armors of God. खुदा के सारे हथियारों को बांध के। The angels of God encamped about. खुदा का दूत छावनी करता हुआ चारों ओर। Angels, it says, brother. खुदा के दूत छावनी करते हुए चारों ओर। We are gone to bring Amen. back our fallen brother. हम आगे बढ़ते हैं कि अपने गिरे हुए भाई को वापस लेके आएं। Remember, याद रखिए, when you are bringing your fallen brother back, angels are with you. जब आप अपने गिरे हुए भाई को वापस लेके आ रहे हैं, दूत आपके साथ होते हैं। Then he says, तब वो ये कहता है, and when कहते the हैं, battle is finally ended, और जब युद्ध आखिरकार समाप्त हो जाता है, होगा, we will meet Melchizedek again. हम मलकीसेदेक को के साथ फिर से मिलेंगे। Bless God, खुदा को मुबारक कहें, who blessed Abraham there,
जिसने वहां पर अब्राहम को मुबारकबाद दी and gave him the blessing और उसे उस बरकत को दिया and give him bread and wine, और उसे उस रोटी और दाखरस को दिया, the communion. उस प्रभु भोज को। And when the battle's over, और जब युद्ध पूरा होगा we will meet him. हम उससे मिलेंगे। We who are the heirs of the promise of Abraham, हम जो कि अब्राहम के प्रतिज्ञा के वारिस हैं, joint heirs with Christ in the kingdom, राज में मसीह के साथ संगी वारिस हैं, shall meet him at the end of the road उससे मार्ग के अंत पे मिलेंगे and take bread and wine again और फिर से रोटी और दाखरस लेंगे when the battle's over. जब युद्ध पूरा हो चुकेगा। That is future. ये भविष्य है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। When the battle is over, जब युद्ध पूरा हो चुकेगा। in this battle we are fighting. इस युद्ध में तो हम लड़ते हैं, We are running after a lost brother. हम अपने गिरे हुए भाई के पीछे भागते हैं। And when the battle is over, और जब युद्ध पूरा हो जाता है, he'll serve us the communion there. हमें वो वहां प्रभु भोज परोसेगा। Are you understanding? आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? So in Genesis, तो फिर उत्पत्ति में, in the middle of the Bible, बाइबल के बीच में and in the last days, और अंत के दिन में communion will be served. प्रभु भोज परोसा जाएगा। It was served in हालेलुया। Genesis. उसको उत्पत्ति में परोसा गया, It was served in the middle of the Bible, उसे बाइबल के बीच में परोसा गया and it will be served in the last days. और फिर अंत में वो फिर से परोसा जाएगा। Every time after the battle is over. हर दफा जब युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद। आमीन। There's a little twister here, एक थोड़ा घुमावदार बात यहाँ पर है, but if you can digest it. परंतु अगर आप इसे पहचान पाए। I know our eyes are in future. हम जानते हैं हमारा तो भविष्य में है, Let me tell you something. पर मैं आपको कुछ बताऊंगा। When the battle is finally ended, जब युद्ध वास्तविकता में समाप्त हो जाएगा, in 957 he's saying this, 1957 में उसको ये कह रहे and he हैं said in many places, और बहुत सारी जगहों पे इसको कहा है, we will meet Melchizedek again. हम मलकीसेदेक से फिर से मिलेंगे। आमीन। Then why did he preach in 65? Who is this Melchizedek? तो फिर उन्होंने 65 में ये क्यों प्रचार किया, ये मलकीसेदेक कौन है? And why did the mighty angel came down और क्यों बलि स्वर्गदूत नीचे उतर के आए? in that theophany? उस थियोफनी में, In the same form he came to Abraham उसी रूप में जिस रूप में वो अब्राहम के पास आए थे and opened the book and brought it to us. और पुस्तक को खोला और उसे हमारे पास लेके आए। Did you and I meet that Melchizedek? क्या आपकी और मेरी मुलाकात हुई उस मलकीसेदेक से? But it can't happen till the battle is over. पर ये तब तक नहीं हो सकता जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए। That हालेलुया। means- इसका मतलब ये है, Before the cloud came, इससे पहले बादल आया, the battle was finished. युद्ध पूरा हो चुका था। My God, And we हालेलुया। are carriers of that vision which was finished in heaven. और हम उस दर्शन के वाहक हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं जो दर्शन स्वर्ग में पूरा हुआ है। God had some people in these last days in his thoughts. खुदावंद के विचारों में कुछ ऐसे लोग थे अंत के दिनों के Like he लिए, had Abraham. जैसा उसके पास अब्राहम था, Like he thought of Jesus. जैसे उन्होंने यीशु के बारे में सोचा, Like he thought of Brother Branham. जैसे उन्होंने भाई ब्रैनम के बारे में He सोचा, saw of some in the last days. उन्होंने कुछ लोगों के बारे में सोचा जो इस अंत के दिन में होंगे, Finishing that battle. जो कि उस युद्ध को पूरा कर रहे हैं। They without us cannot be made perfect. वे हमारे बगैर पूरे सिद्ध नहीं हो सकते। And God had thought of them in the vision. और खुदावन ने उनको दर्शन में सोचा था, And now it requires for them to climb up higher और अब into that उनके लिए- vision. आमीन। अब ये उनके लिए आयद होता है, उनके लिए मांग है कि वो अब ऊंचा चढ़ाई करें ताकि उस दर्शन में पहुंच पाए। That's why he began with revelation. इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य से चालू किया, Because revelation is a realm before vision. क्योंकि प्रकाशन जो है वो एक आयाम है जो कि दर्शन से पहले आता है। You can't come to vision till you have revelation. आप दर्शन में नहीं आ सकते इससे पहले आपके पास प्रकाशन हो। Revelation takes you to vision. जो प्रकाशन है वो आपको दर्शन में लेके जाता And है, after vision, और दर्शन के बाद when you start walking in that, जब आप उसमें चलने लगते हैं, that faith cannot be shaken by anything. वो विश्वास किसी भी चीज से हिलाया नहीं जा सकता। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई, Brother Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा, when that squirrels were created, जब वो गिलहरियां पैदा की गई, he said, standing there, seeing it happen before your eyes. उन्होंने कहा कि वहां खड़े होके अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देखना। Do you know what he said? आप जानते उन्होंने क्या कहा? That puts you back in the word. ये आपको वापस वचन में
स्थान दे देता है। There's a very famous line there in Perfect Faith. सिद्ध विश्वास वाले संदेश में बड़ी प्रसिद्ध लाइन है वहां पर। When this happened, जब ये हुआ, it puts you back in the Word. ये आपको वापस वचन में स्थान देता है। It put Brother Branham back in the Word. इसने भाई ब्रैनम को वापस वचन में स्थान दिया। There's some more to be put back in the Word. आमेन। क्या कुछ और है बाकी जो कि वचन में वापस स्थान प्राप्त करने वाले हैं In these last days, इन अंत के दिनों में, to walk in that vision. ताकि उस दर्शन में चले। And when you come to that realm, और जब आप उस अय्याम में पहुंचते हैं, here you face difficulties. यहाँ तो आप परेशानियों का सामना करते But in हैं, that realm, पर उस अय्याम में the battle is over. युद्ध पूरा हो चुका है। Otherwise, he wouldn't have picked up the book. नहीं तो उसने पुस्तक को उठाया नहीं होता, He wouldn't have opened the seals. उसने मोहरों को खोला नहीं होता। He had already हालेलुया। finished the work. उसने पहले से काम को पूरा कर दिया है। That last lost brother has been saved in God's books. आमेन। वो आखिरी खोया हुआ पिछड़ा हुआ भाई बचाया जा चुका है खुदा की किताबों में, For which you and I are running today. जिसके लिए आप और मैं आज भागा दौड़ी कर रहे The हैं। last name has already been splashed under the blood. जो आखिरी नाम है वो पहले से लहू में डुबोया जा चुका है। It is only then and only then he picks up the book and gets up from his intercessory box. ये तब है उसके बाद ही जब वो पुस्तक को उठाता है और अपने मध्यस्थता के कक्ष में से बाहर आता है And picks up the book और पुस्तक को उठाता है and shift from Son of God to Son of Man. और खुदा के पुत्र से के ओहदे से हट के अब मनुष्य के पुत्र के ओहदे में आता है, As a judge in the last days, एक न्यायाधीश के रूप में अंत के दिनों में, to finish the work. ताकि काम को पूरा करे। I hope you understand it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। And there is a royal seed of Abraham today और यहाँ पर एक खुदा अब्राहम का राजसी वंश है, who's finishing that battle which has been finished. वो उस युद्ध को समाप्त कर रहा है जो पहले से समाप्त हो चुका है। Finishing a battle which has been finished. वो उस युद्ध को पूरा करने में लगा हुआ है जो पहले से पूरा हो चुका है। Isn't it strange? क्या ये विचित्र नहीं? You're Amen। just finishing a battle which has been finished. हम ऐसे युद्ध को पूरा कर रहे हैं जो पहले से युद्ध समाप्त हो चुका है। That's why when he showed his face इससे जब उसने अपने चेहरे को दिखाया to the royal seed, राजसी वंश को, it is to those whose battles are over. ये उनके लिए है जिनके युद्ध समाप्त हो चुके हैं। And when they look at that face, और जब वो उस चेहरे को देखते हैं, when they meet that Melchizedek, जब उनकी मुलाकात उस मलकीसेदेक से होती है, and it's not just a picture hanging on a wall. और ये केवल एक तस्वीर मात्र नहीं है जो कि एक दीवार पर टंगी है। When that picture starts speaking, आमेन। जब वो तस्वीर बोलना चालू करती है, when a man steps out of that picture जब एक आदमी निकल के उस तस्वीर में से बात करता है and starts talking with you, और आपसे बात करता है, it's a proof to tell you, ये एक सबूत है साहब आपको बताने के लिए, to tell you, कि आपको बताएं you have won. आप जीत चुके, The battle is done, finished. युद्ध पूरा हो चुका। I've come to give you bread and wine. मैं तुम्हें रोटी और दाखरस देने आया हूँ, And we are just finishing what has been finished. और हम ठीक उसी को पूरा कर रहे हैं जो पहले से पूरा हो चुका है। Oh my brother, ओ मेरे भाई, what a thought it is. क्या विचार है ये। आमीन। गॉड ब्लेस यू भैया। It's true Amen. that we are going to meet him one of these days in a glorified body. हाँ ये बात सत्य है कि हम उससे मिलेंगे यानी कि दिनों में एक महिमा युक्त देह में, But we have already seen him in his theophany. पर हमने पहले से उसको उसकी थियोफनी में देख लिया है। That's right, brother. ये बात बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। And when the battle is finally ended, और जब युद्ध आखिरकार समाप्त हो जाएगा, we will meet Melchizedek again. हम मलकीसेदेक से मुलाकात करेंगे Who फिर से। bless God, who blessed Abraham there मुबारक हो खुदा जिसने वहां पर अब्राहम को आशीष दी and gave him the blessing और उसे आशीष दी and give him bread and wine, और उसे रोटी और दाखरस दिया, the communion. प्रभु भोज। And when the battle's over, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, we'll meet him. हम उससे मिलेंगे। We who are the heirs of the promise of Abraham, हम जो कि उस अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस हैं, joint heirs with Christ in the kingdom, राज में मसीह की संगी वारिस हैं, shall meet him at the end of the road उससे मार्ग के अंत में मिलेंगे and take bread and wine again और फिर से रोटी और दाखरस लेंगे when the battle's over. जब युद्ध पूरा हो Who जाएगा। is this Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन The है? one that had no father, had no mother, had no beginning of days or the ending of life. वो जिसका ना तो पिता था, ना माता थी, ना दिनों का शुरुआत, ना दिनों का अंत। He'll be जीवन there का to अंत। give the communion again. वो वहां होगा प्रभु भोज फिर से देने के लिए। You get it? क्या आपको समझ में आया? When we pull up on certain nights, when we come together and take communion from the hands of the ministers, जब हम इकट्ठा होते हैं और कुछ खास रातों में और सेवकों के हाथों से प्रभु भोज को लेते हैं, representing that we believe in the death, burial and resurrection of the Lord Jesus. जो कि दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के मरने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को। That veil, his body, that he was unveiled in God. वो अर्थात वो पर्दा जो कि उनकी देह थी जिसमें वो
पर्दे के पीछे थे खुदावंद, We take it as a representative. We are dead to the things of the world and been born anew of the Spirit. और हम उसको दर्शाने के रूप में लेते हैं कि हम दुनिया की चीजों के लिए मर चुके हैं और नए पैदा हो चुके हैं आत्मा में। All this has to happen with a believer while he's taking that bread and wine. ये सब कुछ एक विश्वासी के साथ होना चाहिए जब वो प्रभु भोज को ले रहा है, रोटी और दाखरस को, And we walk with the body of Christ. और हम मसीह की देह के साथ चलते हैं, All the believers together. सारे विश्वासी एक साथ। When the great battle is finished जब महान युद्ध पूरा हो जाता है and we come up again with Christ, और हम मसीह के साथ फिर से आते हैं, we'll take the communion with him in the kingdom of God anew. हम प्रभु के साथ फिर से खुदा के राज में प्रभु भोज को लेंगे And eat the flesh and drink the blood of the grape again in the kingdom of God. और मांस को खाएंगे और उन दाग के लहू को पिएंगे फिर से खुदा के राज में। Oh, there's Melchizedek. ओ वहां है वो That's who मलकीसेदेक, he was. ये था वो। Now let's read just a little further about him here in the 18th verse. अब थोड़ा सा उसके विषय में आगे पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा आगे। Now he's in Genesis 18 14 here. अब यहाँ पर उत्पत्ति 14 में है। And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. You get it? और मलकीसेदेक जो शालेम का राजा है वो यहाँ पर रोटी और दाखरस लेके आया। क्या आपको समझ में आया? And he was a priest of the Most High God. और वो खुदा परम प्रधान खुदा का याजक था। And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heavens and earth. और उसने उसके आशीष दी और कहा, मुबारक हो अब्राहम का खुदा, जो कि मुबारक हो अब्राहम परम प्रधान खुदा की ओर से। And he blessed him, and he blessed be the Most High God, which has delivered thine enemies into thy hand, and he gave him a tenth of all. He paid tithes to Melchizedek. Abraham gave him a tenth of the spoil. और उसने उसको आशीष दी, उसने आशीष दी और उसने कहा कि तू मुबारक ठहरे परम प्रधान खुदा की ओर से, जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है। और उसने उसे सब चीजों का 10वां भाग दिया। उसने मलकीसेदेक को 10वां अंश दिया, अब्राहम ने पूरी लूट का 10वां अंश दिया। Now I want you to notice here as Paul goes on giving a background for the coming lesson now. अब मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, पौलुस जैसे आगे बढ़ता है कि एक आपको भूमिका दी जाए आने वाली शिक्षा के लिए। And the king of Sodom said unto Abraham, Give me the persons and take thou the goods to thyself. Now the king of Sodom said, Now you just give me back my subjects and you take the goods to yourself. और सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा कि मुझे लोगों को दे दे और जो सामान है सारा जो तुमने पाया है वो अपने पास रख ले। अब जो सदोम का राजा था उसने कहा कि मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को मुझे दे दे और सामान अपने पास रख ले। And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, El Elyon, the possessor of heavens and earth there. The Most High God, the possessor of heavens and earth. और अब्राहम ने कहा सदोम के राजा से, मैंने अपने हाथ को यहोवा की ओर उठाया है, जो कि परम प्रधान खुदा है, अर्थात एल एलियोन जो कि यहाँ पर है, उसका अर्थ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, जो परम प्रधान खुदा है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। That I will not take from a thread even to a shoe latch. He didn't have a great campaign to take up money. He only wanted his fallen brother. आमेन, आमेन। और मैं एक यहाँ तक कि फीता भी या जूती का बंद भी नहीं लूंगा। उसका कोई ऐसा बड़ा कैंपेन नहीं था कि वो पैसा उगाए या पैसा ले। उसका तो केवल मकसद अपने गिरे हुए भाई को वापस लेके आना था। You know why? आप जानते हैं क्यों? The time to latch the shoes was over. आमेन, आमेन, आमेन। जो जूती में फीता डालने का समय खत्म हो चुका था। The vision had moved to the next platform. जो दर्शन है अब अलग अगले अय्याम में पहुंच चुका था। I'll not even take a shoe latchet. मैं यहाँ तक कि जूती का बंद भी नहीं लूंगा। I will not take it now. मैं उसे अब नहीं लूंगा। Because the hour is here for a tent vision. क्योंकि समय अब तंबू के दर्शन के लिए है। हालेलुया। And I met that man who will take me to that vision. और मेरी मुलाकात उस आदमी से हो गई है जो मुझे उस दर्शन में ले जाएगा। The king of that city. उस नगर का राजा who lives in that pyramid, जो कि उस त्रिभुज में रहता है, who is the king of that tent. जो कि उस तंबू का राजा है। हालेलुया। I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। He refused the shoe latchet. उसने
उसने जूती के बंद को इनकार कर दिया। It was time not to teach Pentecostal babies supernatural things. अब ये समय था कि पेंटिकॉस्टल बच्चों को अलौकिक चीजें आगे को ना सिखाई जाए, Because Melchizedek had arrived. क्योंकि मलकीसेदेक का आगमन हो चुका था। It was time for another vision. ये अब समय था एक और दर्शन के लिए। The Mexican babies had already pulled their cart. मैक्सिकन बच्चों ने अपनी गाड़ी पहले से खींच ली थी And all those things had और happened. वे तमाम चीजें हो चुकी थी। But this was another time. पर ये एक और समय था। This is not first pull and second pull. ये पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव नहीं This है, is getting ready for a body change. ये तैयारी थी, तैयार होना था एक देह बदलाव के This is लिए, getting ready for another seal. ये एक और मोहर के लिए तैयारी होना था। That's why he refused the shoe latchet. इसलिए उसने इनकार कर दिया उस जूते के बंद से। I hope you're catching the vision. मैं आशा करता हूं आप पकड़ रहे होंगे दर्शन को। Amen. आमीन। My. आमीन। Lest thou say, I have made Abraham rich. कहीं तू ऐसा ना कहे कि मैंने अब्राहम को धनी बना दिया। Save only that which the young man have eaten and the portion of the man which went with me. केवल वही जो जवानों ने खाया है और वो उन लोगों का भाग मनुष्य जो मेरे साथ गए थे। Now there's a very good doctrinal, I would say church order teaching laying here, which I'm going to bring to you now. अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कलीसिया क्रम का चर्च ऑर्डर की एक शिक्षा है जो यहाँ पर पाई जाती है, जिसको मैं आपके सामने अभी रखूंगा। Now I want you to notice, Abraham said, I will not take from a thread to a shoe latch. अब मैं चाहता हूं कि आप गौर करें। अब्राहम ने कहा मैं यहां तक एक फीते से लेके एक धागे से लेके जूती के बंद तक के कुछ नहीं लूंगा। He didn't fight the war to make a lot of money. उसने युद्ध को इसलिए नहीं लड़ा था कि वो बहुत पैसा बना ले। And real true battles are not made with selfish motives. आमीन। और वास्तविक सच्ची लड़ाइयां इसलिए नहीं लड़ी जाती जिसमें कोई स्वार्थ छिपा हो। Wars are not fought for money. लड़ाइयां पैसों के लिए नहीं लड़ी जाती। Wars are fought for motives, for principles. लड़ाइयां तो कुछ खास कारणों से और कुछ खास सिद्धांतों के कारण लड़ी जाती हैं। Man fight war for principles. मनुष्य जो है लड़ाई सिद्धांतों के आधार पर लड़ता है। And when Abraham went out to get Lot, और जब अब्राहम बाहर वहां गया कि लूत को बचा के लेके आए, he didn't go out because he knew he could whip the kings and take all their possession. वो इसलिए वहां नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि वो इन राजाओं को लूट लेगा और इन तमाम इन राजाओं का सामान ले लेगा। He went out for the principle of saving his brother. वो केवल एक सिद्धांत के कारणवश गया, वो ये था कि अपने भाई को बचाए। And any minister that sent out under the inspiration of the King of Heaven, और कोई भी सेवक जो भेजा जाता है स्वर्ग के राजा के प्रेरणा के अंतर्गत, will not go for money. वो पैसे के लिए नहीं जाएगा। Neither will he go to make big churches. ना ही वो बड़ी बड़ी कलीसिया बनाने के लिए जाएगा। Neither will he go to inspire denominations. ना ही वो संस्थागत गिरजों को प्रेरणा देने के लिए He'll only जाएगा। go for one principle, वो केवल एक ही सिद्धांत के लिए जाएगा and that is to bring back his fallen brother. और वो ये है कि वो अपने गिरे हुए भाई को वापस लेके आए। Whether he gets a dime in the offering or whether he doesn't, चाहे उसे चवन्नी मिले ऑफरिंग में या उसे वो भी ना मिले, it won't make a bit of difference to him. उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। As I say, real wars are fought and waged for principles and not for money. जैसा मैं ये कहता हूं कि वास्तविक लड़ाइयां जो हैं केवल इसलिए लड़ी जाती हैं और इसलिए की जाती हैं सिद्धांतों के लिए, कारणवश ही, पैसे के लिए नहीं। Listen something. I've got some reports. सुनिए। अभी नहीं, मेरे पास कई जगहों में सालों साल की बता रहा हूं। Years together I have seen this. मैंने साल बा साल बहुत ये देखा है। Thank God majority are not like that. खुदा का धन्यवाद हो अधिकांश लोग ऐसे नहीं हैं। But I'll tell you the attitude of some people. पर मैं आपको बताऊंगा एटीट्यूड कुछ लोगों का। They go to a new place. वो एक नई जगह पे जाते हैं, They minister the word there. वहां पर वो वचन को वहां पर रखते हैं Since the word is wonderful, क्योंकि वचन बहुत बढ़िया है। immediately people catch attention. एकदम से लोग आकर्षित हो जाते हैं And when they catch that attention, और जब लोग उससे आकर्षित होते हैं they start looking at them and say, God bless you, we'll come again. वो उनकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि खुदावन आपको आशीष दे, हम फिर से आएंगे। After 2 or 3 visits, 2 या 3 विजिट्स के बाद then they openly tell that family, वो खुले रूप से उस परिवार से कह देते हैं now you should send money to me. अब तुम्हें मुझे पैसा भेजना चाहिए And you should give your money to me. और तुम्हें अपना पैसा मुझे देना चाहिए, You should give your tithes to me. तुम्हें अपनी 10 दहे की मुझे देनी चाहिए। Openly they say it. खुले रूप से वो कह देते हैं इसको। And when that starts happening, और जब ये होने लगता है the ministry starts falling. जो सेवकाई है वो गिरने लगती है And the people start thinking otherwise. और लोग अलग अलग बात
विपरीत सोचने लगते हैं। And then suddenly you find और अचानक से आप ये पाते हैं that the people catch another spirit. कि लोग जो हैं एक दूसरा आत्मा पकड़ लेते हैं। Yes, he ministers the word. हाँ, ये वचन की सेवकाई तो करता है। Yes, he expounds the scriptures. Yes. हाँ, ये पवित्र शास्त्र को खोल के तो दिखाता है, But he has some demands. पर इसकी भी कुछ मांगे हैं। Sometimes the demands don't come openly, they come secretly. कभी कभी जो डिमांड्स हैं, कभी कभी जो मांगे हैं, वो खुले रूप से नहीं आती पर छुपे रूप से आती हैं, In a covered fashion. एक ढके हुए रूप से। See, I'm a minister देखो, मैं सेवक हूँ and I don't even have a bike to go to places. और यहाँ तक कि मेरे पास बाइक भी नहीं है जगह जगह जाने के लिए। What happened, brother? I'll get you a bike. भाई क्या हो गया, मैं आपको एक बाइक दिलाऊंगा। Oh, brother, God bless you. ओ भाई, खुदावन आपको आशीष दे। Somebody came to his house. कोई उनके घर आया, What can we do? हम क्या कर सकते हैं? We are just following the Lord हम तो प्रभु के बीच चल रहे हैं and we don't have much. और हमारे पास बहुत नहीं है। Somebody pointed out, किसी ने बात गौर कराई, you don't even have a cooler or an AC? ओ आपके पास कूलर या एसी भी नहीं है। Brother, भाई what to do? क्या करें? But you know, it's said in such a way, पर आप पाएंगे ये इस तरीके से बोला जाता है, somehow the listener knows that he has to do something. किसी रीति से जो सुनने वाला है उसे ये पता लगने लगे कि अब उसे कुछ करना चाहिए, So he buys him a cooler. तो फिर वो उसे कूलर दिला देता है। Somebody gets him a bike. कोई शख्स उसे बाइक दिला देता है, Somebody gets him something. कोई और शख्स उसे कुछ और चीज दिला देता है, Then somebody puts for the church building. फिर कोई और शख्स जो है चर्च की बिल्डिंग के लिए दे देता है। Somehow, sometimes you find, किसी रीति से आप कभी कदार ये पाते हैं, when the spirits are discerned, people find that he is actually fighting. Yes, he's preaching the word, he's preaching the gospel, but actually behind all that, there are some other intentions also. कि आप ये पाते हैं कि किस तरह से जब आत्मा को परखा जाता है तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये युद्ध तो लड़ रहा है, ये वचन का प्रचार तो कर रहा है, संदेश को बताने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पीछे कुछ इसके स्वार्थ भी छिपे हुए हैं। Then one day what happens? फिर एक दिन क्या होता है, Another preacher goes to visit that family. एक दूसरा प्रचारक उस परिवार में जाता है, They have a fight. फिर उनमें झगड़ा हो जाता Why है। did you go to my family? तुम मेरे परिवार के पास कैसे पहुंच गए? Though the reason is different. जबकि कारण तो फर्क है। You see, आप पाएंगे, this is my hen which gives me egg. ये तो मेरी मुर्गी है जो मुझे अंडा देती है। Why have you come to pick up my hen? तुम मेरी मुर्गी को उठाने कैसे आ गए? That same old rotten denominational spirit. ये वही पुरानी सड़ी हुई संस्थागत गिरजों वाली आत्मा है। I hope you catch it. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ लें। That is why I really thank God. इसलिए मैं खुदा का वास्तविकता धन्यवाद देता हूं। When Brother Branham started that ministry, जब भाई ब्रह्म ने वो सेवकाई को चालू किया, he never depended on anybody's money. वो किसी के भी पैसे पे निर्भर नहीं हुए। In fact, he himself worked. वास्तविकता में तो उन्होंने खुद काम किया, And later on, when the church was built up, और बाद में जब कलीसिया तामीर की गई and he was working as a full time, और वो फुल टाइम के रूप में काम कर रहे थे, happily the people gave to him knowing that he doesn't require it. In fact, I mean, his eyes are not on that. खुशी खुशी लोग उन्हें देते थे चीजें, ये जानते हुए कि उनको उन चीजों की कोई ऐसा लालच या लोभ नहीं है। I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं आप इन्हें समझ रहे होंगे। When you discern spirits, जब आप आत्मा को परखते हैं, that's why he's saying here, real wars are not waged for money, they are waged for a principle. आमेन। इसलिए वो यहां पर कह रहे हैं कि जो वास्तविक लड़ाइयां हैं वो किसी पैसे के लिए नहीं लड़ी जाती, परंतु उस सिद्धांत के कारणवश लड़ी जाती हैं। Try to understand. समझने की कोशिश करिए। Bring some people in the church, चर्च में कुछ लोगों को ले आइए, then keep on visiting them. फिर बार बार उनसे मिलने जाइए। God really bless you for that. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे इसके लिए। But there is another side पर इसका एक और पलट है which I want to show to you. जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Sometimes that also happens. कभी कभी ये भी होता है, These are my families. ये लोग तो मेरे परिवार हैं। My families, what kind of my families? किस किस्म के मेरे परिवार? In other words, they support me. दूसरे शब्दों में ये मेरा को सपोर्ट करते हैं। A true minister is not after that. एक सच्चा सेवक इसके पीछे नहीं है। When that spirit comes to work in the church, जब ऐसा आत्मा कलीसिया में काम करने के लिए आता है, you are building up a Nicolaitan setup.
आप एक निकुली तंत्र को तामीर कर रहे हैं। You are marginalizing some people. आप कुछ लोगों पे दायरा खींच रहे हैं। Periodically, I go there हर समय थोड़े थोड़े समय के बाद मैं वहां जाता हूं and I pray for them. और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Something comes from that side also. वहां से कुछ मिल भी जाता है। So you see, तो आप पाएंगे when you catch that spirit, जब आप उस आत्मा को पकड़ते हैं, here's a prophet telling something. यहाँ एक नबी है जो कुछ बता रहा है। Real wars are fought and waged for principles and not for money. वास्तविक लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं सिद्धांतों के कारणवश, किसी पैसे के कारण से नहीं। And in a country like ours, और एक ऐसे देश में जैसा हमारा है, this becomes a problem sometimes. ये कुछ ऐसी चीज है जो कभी कभी समस्या बन जाती है। But if there is a real seed of Abraham, पर अगर वास्तविक मसीह अब्राहम का वंश है, you know what his motives are. आप जानते हैं उसका उद्देश्य क्या है। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ रहे होंगे। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दे। And men and women who join church and come into church to be popular because the Jonases belong there, or they change their church from a little church to a big church, you are doing it for a selfish motive and the right principles not behind it. और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री चर्च में इसलिए जुड़ता है ताकि वो चर्च में प्रसिद्ध बन जाए, या इसलिए कि जोन्स का परिवार वहां पर जाता है, या इसलिए कि वो का चर्च इसलिए बदलते हैं कि एक छोटे चर्च से एक बड़े चर्च में आ जाएं, तो आप इस काम को अपने स्वार्थ के कारण कर रहे हैं और कोई सही सिद्धांत, सही मंशा इसके पीछे नहीं है। You should be willing to stand at the battlefront. आपको तो तैयार होना चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में आप खड़े हों। Next thing in my book is in dark lines. In other words, highlighted. Yes. In my book. Amen. This is my old Hebrews book. It is highlighted. ये जो अगली पंक्ति जो लिखी है, ये मेरी पुरानी इब्रानियों वाली पुस्तक है संदेश की, उसमें ये गाढ़े शब्दों में लिखा है, उजागर किया हुआ, Listen what he किया हुआ। said. सुनिए कि वो क्या कहते हैं। In this tabernacle here, इस आराधनालय में यहाँ पर when things go wrong, जब चीजें गलत होती हैं, and you men and you women will run and go over somewhere else, और आप जो आदमी हैं या औरत हैं भाग के कहीं और चले जाएं, or lay out till a little fuss or the stew is over, और कहीं पीछे बैठे रह जाएं कहीं अलग किनारे में, जब तक कि वो तमाम जो झगड़ा है वो खत्म ना हो जाए। थोड़े समय के लिए चर्च नहीं आए, थोड़े समय के लिए चर्च छोड़ दिया, थोड़े समय के लिए अपने आप को पीछे कर लिया, चर्च में कुछ मामला चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई झगड़ा था, कोई चीज चल रही थी चर्च में, उस टाइम पे अपने आप को अलग कर लिया, चर्च से अलग कर लिया, और चर्च से अलग होके चले, जब झगड़ा वहां चर्च का खत्म हो जाएगा हम वहां तब ज्वाइन करेंगे। सुन रहे हैं आप? मैं एक आत्मा पकड़वा रहा हूं, नबी ने यहां से प्रचारा। Amen. There's something wrong with your experience. कुछ कहीं ना कहीं गलत है आपके अनुभव के साथ। That's right. ये बात ठीक है। Now I'm coming to a point. अब मैं एक बात पे आ रहा हूं। We have a custom here, हमारे पास एक रीति है, and I think you understand this custom which Brother Branham is preaching. और मैं सोचता हूं आप इस रीति को समझेंगे, इस कस्टम को समझेंगे जो भाई ब्रैनम यहाँ प्रचार कर रहे हैं। We have an order here. हमारे पास यहाँ एक ऑर्डर है। This church is based upon the principles of the Bible. ये कलीसिया आधारित है बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर। If there's somebody in here not doing right, अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो गलत करे, ठीक ना करे, and you think they are not, और आप ये सोचें कि ऐसा नहीं है, मतलब वो गलत कर रहे हैं, और you वो गलत go कर रहे to हैं, him and talk to him. आप वहां पर जाएं उनके पास और उनसे बात करें। If you can't reconcile him, अगर आप उसको सही समझ पे नहीं लेके आ पाए, then take some brother with you, तो फिर किसी भाई को अपने साथ उसके पास ले जाएं, 1 or 2 more. एक या 2 अधिक। If he won't be reconciled, then अगर तब भी वो ना समझे, tell it to the church, तब कलीसिया को बता दें, and the church will dismiss him, तब कलीसिया उसे बर्खास्त करेगी, have no more fellowship with him. और उसके साथ आगे कोई संगति नहीं करेगी। And Jesus said, और यीशु ने our कहा, Lord Jesus said, whatever you lose on earth, I will lose in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलते हो मैं स्वर्ग में खोलता हूं। This is the right way. ये है सही तरीका, This is the church order. ये है चर्च का ऑर्डर। That's the reason you have so much troubles.
यही कारण है आपके पास बहुत सारी समस्या होती हैं, because you don't follow the Bible principles. क्योंकि आप बाइबल के सिद्धांतों के पीछे नहीं चलते। If somebody in the church is causing a disturbance अगर कोई चर्च में कोई गड़बड़ी पैदा कर रहा है or something going wrong, या कोई ऐसी चीज जो गलत हो रही है, it's not your duty to go talk about that man or that woman. आपका ये कर्तव्य नहीं कि उस आदमी के बारे में या उस स्त्री के बारे में जगह जगह बताएं। It's your duty to go to that man or woman and tell him his error. आपका कर्तव्य यह है कि खुद पहले उस आदमी के पास या उस स्त्री के पास जाएं और उसे उसकी गलती से अवगत कराएं। And if he won't hear you, take some other one with you. और अगर वो आपकी ना सुने तो किसी और को अपने साथ लेके जाएं। If he won't hear that, अगर वो उसकी भी ना सुने then the church loses him. तब कलीसिया उसे बर्खास्त करेगी। Jesus said, यीशु ने कहा, what you lose on earth, I'll lose in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पे छोड़ते हो मैं स्वर्ग में छोड़ देता हूँ। What you bind on earth, I'll bind in heaven. जो तुम पृथ्वी पे बांधते हो मैं स्वर्ग में बांध देता हूँ। That's the tie of the church. ये कलीसिया का बांध है। Here not long ago, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, a good preacher friend of mine, एक अच्छा प्रचारक दोस्त मेरा, he had a boy, उसका एक बेटा था and that boy had been going to church, और वो लड़का जो है चर्च जाता था, his own church. अपने ही चर्च में। He got to a place वो एक ऐसे स्थान में आ गया where he started running around with a little old girl who smoked and drank and carried on. वो एक ऐसी लड़की की संगति में आ गया जो कि सिगरेट पीती थी और शराब पीती थी और इन सब चीजों में थी। Preacher said, of course, that's his business. प्रचारक ने कहा, अरे ये तो उसका अपना मामला है। A very bosom friend of mine and a nice boy. एक बहुत ही करीबी दोस्त मेरा और बहुत ही बढ़िया लड़का। But he got all infatuated with some young woman. पर वो आकर्षण महसूस करने लगा एक ऐसी जवान लड़की के साथ। And she had been married, और वो जबकि उसका शादी हो चुकी थी, had some children. उसके कुछ बच्चे थे, Her husband was living. उसका पति जीवित था। Now he's talking to this about this minister. अब वो इस सेवक के बारे में बात कर रहे हैं। He was afraid वो आदमी जो सेवक है वो इतना घबराया हुआ था they was going to have that boy would marry her. कि वो जो लड़का है उनका वो उस लड़की से शादी कर लेगा। His son would marry that kind of woman. उसका जो बेटा है वो इस किस्म की लड़की से शादी कर लेगा। So that brother was all tore up and he said to me, Brother Branham, तो वो भाई बेचारा बहुत ही परेशान था और उसने कहा मुझसे, भाई ब्रैनम, I want you to go to this certain boy of mine. मैं चाहता हूं कि आप इस खास लड़के के पास जाएं जो मेरा है। I want you to talk to him. मैं चाहता हूं कि आप उससे बात करें। I said, मैंने कहा, Brother, ब्रदर, I almost call his name. मैं उसका नाम लेके बात करता हूं लगभग। नहीं लगभग मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं लेकिन लगभग मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। You have a better way. आपके पास एक बेहतर तरीका है, Don't send me. मुझे मत भेजिए। If the boy is not living up अगर लड़का ठीक नहीं चल रहा and the church has saw him doing wrong, और कलीसिया ने उसे गलत करते हुए देखा है, then is the thing for the church to do this business. तो ये कलीसिया का मामला है कि इस काम को पूरा करे। That's left with the church. ये कलीसिया के दायरे में है And the church goes over and tells him. और ये कलीसिया को जाके उसको बताना चाहिए। So he took a brother तो उसने एक भाई को लिया and went over and told him. और जाके उसे बताया And he got back at the brother. और वो फिर उस भाई के पास आया, भाई पे पलटा. उस भाई पे पलटा वापस Let him know that he was attending to his own business. और उसे ये बताने की कोशिश करी कि वो अपने काम से काम मतलब रखे, For him to do the same. कि वो ऐसा ही करे। He took another brother, two deacons went over and told the boy. वो एक और भाई को लेके गया, दो डीकनों को लेके गया और वहां पर जाके उस लड़के के पास बात करी। He wouldn't listen to it. वो सुनने को कोई राजी नहीं था। They told it to the church. उन्होंने इस बात को कलीसिया को बताया And he never come for several nights. और वो बहुत देरी रातों के लिए नहीं आया। You see, the church gave an announcement to that man, a warning to reconcile within certain periods. आप पाएंगे कि कलीसिया ने चेतावनी दी उस आदमी को कि एक खास समय के दौरान में तुम ठीक हो जाओ, साउटे हो जाओ And come back and reconcile. और वापस आके ठीक हो जाओ। He never come वो नहीं आया for several nights बहुत देरी रातों के लिए, to be reconciled to the church. ताकि कलीसिया से वापस मेल मिलाप करे। After his sin was told before the church, जब कलीसिया को उसके पाप को बता दिया गया, he never उसके came बाद back. He never came back to be reconciled. वो वापस मेल मिलाप करने के लिए नहीं आया। Then the church loosed him. तब कलीसिया ने उसे छोड़ दिया। अब सुनिए क्या हुआ अगला. And about a month from then,
और फिर लगभग 1 महीना बीता उस समय से he was stricken down with pneumonia. वो निमोनिया के कारण बुरी हालत में आ गया And the doctor said, और डॉक्टर ने कहा there's not a chance in the world for him to live. दुनिया में एक भी मौका नहीं कि उसको मिले कि वो जी पाए। Then he crawled back. तब वो घुटनों पे आके वापस लौटा। God knows how to do it. खुदावन जानते हैं इस काम को कैसे किया जाए। This is the biblical way. ये है बाइबल का तरीका। We try to do it in ourselves. हम तो उसे अपने में कोशिश करते हैं करने की। This is very important for church to follow these principles. ये बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए कि इन सिद्धांतों के अनुसार चले। When you see such a wrong, you have to do such a thing. जब आप ऐसे गलत को देखते हैं तो आपको ऐसे काम को करना है। ये भी एक शिक्षा है का हिस्सा है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं। कलीसिया कुछ अपनों को जो वचन के आधार पे ना चलें, शैतान के हाथ सौंपें। ये अधिकार कलीसिया को दिया गया। और कैसे? अपनी संगति उसके साथ तोड़ के। मैं आपसे कुछ कहूंगा। गुजरे कुछ वर्षों में, कई वर्ष हो गए, शायद हमने इस लेवल पे ऐसा किया नहीं। कुछ के साथ किया भी, लेकिन मैं जनरल बात कह रहा हूं। लेकिन जो वचन के आधार पे सही तरीका है वो यही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कुछ इधर उधर ऊंच नीच कलीसिया में हो तो अब हम इस संदेश के आधार पे ये काम करेंगे कि हम कुछ लोगों को शैतान के हाथ सौंपेंगे। जी हां, आपने सही सुना। हम कुछ लोगों को शैतान के हाथ सौंपेंगे। इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि हमने पाया ये कि इस प्रोसेस का असर होता बहुत बढ़िया है। आइए देखें नबी आगे इस प्रोसेस के लिए क्या कहते हैं। We try to do it in ourselves. हम इसे अपने में भी करने की कोशिश करते हैं। Oh, you are to kick so and so out of the church. इस खास शख्स को तो कलीसिया से बाहर कर देना चाहिए। इसको चर्च से निकाल दो। लोग कहते नहीं, इसको चर्च से लात मार के निकाल दो। चर्च से लात मार के निकाल दो, यह बाइबल का तरीका है नहीं। चर्च से निकाल दो का एक तरीका है जो अभी बताया। चर्च से निकाल दो का एक प्रॉपर तरीका है। उस तरीके में फिर खुदावन भी वचनबद्ध है कि वो कुछ करने पे आए। अब आप ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है यहां पे। You have to do this, that or the other. तुम्हें इसके साथ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। Yes, amen. Have you done your part as a church towards it? क्या आपने कलीसिया का हिस्सा होने के नाते अपने हिस्से को पूरा किया? There you are. यहाँ पर आ जाते हैं। That's the way to make them crawl back. यह है तरीका उन्हें वापस घुटनों पे वापस लौटाने का। Turn them over to the devil one time. एक बारी उनको शैतान को सौंप दीजिए। This is the prophet. ये नबी है। This is a part of the doctrine. ये शिक्षा का हिस्सा है। Turning people over to the devil. लोगों को शैतान के हवाले करना। For the betterment of their soul. ताकि प्राणों का लाभ हो। Let me read out further to you. आइए मैं आगे पढ़ूंगा आपके लिए। What did Paul say about this man down there was living with his stepmother? पौलुस ने क्या कहा इस आदमी के विषय में जो कि अपनी सौतेली मां के साथ रह रहा था? That's, 1 Corinthians. आप पाएंगे पहला कुरिन्थियों में है। They couldn't get him reconciled, said, turn him over to the devil. वो उसको मेल मिलाप में वापस नहीं ला पाए, तो उन्होंने कहा पौलुस ने कि उसे शैतान के हवाले कर दो। You find that in the scripture. आप इस बात को आयत में पाते हैं। Since वचन we में have a limited time, I'm just giving you the scripture. You can read it in your spare time.
क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, मैं आपको बस आयत बता रहा हूं, आप अपने खाली समय में इसको पढ़ सकते हैं। They couldn't get him reconciled. वो उसे मेल मिलाप में नहीं ला पाए And what वापस। did Paul said? और पौलुस ने क्या कहा? Turn him over to the devil. उसे वापस शैतान की ओर सौंप दो। Watch what happens. देखिए क्या होता है। In the next letter, Paul wrote, अगली चिट्ठी में पौलुस ने लिखा, this man had got straightened out. ये आदमी ठीक हो गया। तो सीधा करने का एक्चुअल तरीका ये है। आमेन। इसमें टेढ़ी से टेढ़ी लकड़ी सीधी हो जाती है। टेढ़ी से टेढ़ी लकड़ी एकदम सीधी हो जाती है। और अब हम ऐसे सीधा करेंगे। हम क्या करेंगे? खुदावन करवाएंगे, लेकिन हमें अपना पार्ट भी तो करना है, तो हम करेंगे। कुछ टेढ़ी लकड़ियां हैं और उन टेढ़ी लकड़ियों का सीधा होना बहुत जरूरी है। आपकी समझ में आ रही है? और जब हम उन टेढ़ी लकड़ियों को सीधा करेंगे, लकड़ियां, मेरा विश्वास है, सीधी होंगी। या तो सीधी हो जाएंगी खुदा के रहम से, या फिर लकड़ी ही टूट जाएगी। यस। आप मेरी भाषा शैली समझते होंगे। आमेन। यस। मेरे शब्द वही आप नबी के शब्दों में कुछ समय बाद पाएंगे। अभी ये मिलेगा आपको। कह रहे हैं अगली चिट्ठी में वो भाई ठीक हो गया था। He was absolutely straightened out. वो बिल्कुल सीधा कर दिया गया। Sure, God has a way of doing these things. पक्की बात है, खुदा का अपना तरीका है चीजों को करने का, If we'll just follow His rules. अगर हम उसके कानूनों के हिसाब से चलें। If something goes wrong in the church, अगर कलीसिया में कुछ गलत हो जाए, if it's amongst the congregation, अगर इस सभा के बीच में हो, each one of you brothers that's on the deacon board, आप में से हर एक भाई जो कि डीकन बोर्ड में है, one of you deacons don't behave, कोई डीकन जो है ठीक बिहेव नहीं कर रहा, other deacons come and have a meeting. बाकी के डीकन आए और एक मीटिंग करें। Try to reconcile the brother. उस भाई को एक समझ पे लेके आए, Tell him what he's doing. उसे बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। Or one of you members, whatever you are, या कोई भी सदस्यों में से एक हो, कोई भी हो, then it ought to be brought before him. तब ये बात फिर उसके सामने लाई जाए। If he won't do it, अगर वो ऐसा ना करे, then come tell the pastor. फिर आके पास्टर को बताइए। Then he is loosed from the church. फिर वो कलीसिया से छोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, अब जो होगा, अगली बात, ऐसे शख्स को जिसे हम शैतान के हाथ सौंपें, नबी ने वहां समझाया, मैं हिंदी में बोल रहा हूं पहले से, कि आगे में आप में से कोई फंसे नहीं, यानी कि अब हम उसके साथ संगति ना करें, तभी शैतान के हाथ सौंपना होगा। अब ध्यान सुनिए, जब हम किसी को शैतान के हाथ सौंपे कलीसियाई तौर पे, और कलीसिया का कोई फिर छिपे रूप में उसके साथ संगति करे, उसके श्राप को आप भी भोगोगे। अब याद रखना। नहीं ब्रदर, मेरे दिल में आया, चर्च ने तो निकाल दिया, मैंने कहा मैं उसको वापस लाऊंगा। अब आप वचन के विरोध में हैं उसको वापस लाने में। उसको वापस अब खुदा लाएगा, तुम नहीं। जिसको चर्च शैतान के हाथ सौंपे, उसे तुम वापस लेके अब मत आना। उसका दंड के भागी तुम भी हो जाओगे। कि जब चर्च ने शैतान के हाथ सौंपा, मतलब अब चर्च का कोई भी उसके साथ संगति ना करे। और आप करें, मेरी तो मंशा यह बड़ा छिपे रूप है कि उसको वापस लेके आऊं। अब याद रखना, फिर उसके गुनाह का खमियाजा आप भुगतना उसके साथ। ये गलती करना नहीं, मैं एडवांस में बता रहा हूं पहले से, बहुत बुरे अंजाम होंगे। क्योंकि जिसको शैतान के हाथ कलीसिया सौंपे, नबी बता रहे हैं खुदा उसे वापस लेके आया। खुदा के अपने तरीके हैं वापस लाने के। इस लड़के के साथ क्या हुआ? निमोनिया। निमोनिया में 2 झटके लगे बुखार के। 2 झटके बुखार के काफी थे संटी को सीधा करने के लिए। एकदम लकड़ी सीधी हो गई 2 झटकों में, वायरल के। 2-3 105 वाले बुखार, 2-3 झटके, 2-3 कमजोरियां, अप डाउन। उसके बाद एकदम जब सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे होना शुरू हुआ, तब खुदा याद आता है और तब कहते हैं आई एम सॉरी, मैं समझ गया मैं गलत हूं, मैं फिरना चाहता हूं। और नबी ने कहा वो उस प्रचारक का बेटा क्रॉल करता हुआ आया चर्च में। उससे पहले तो अपने आप को जाने क्या समझ रहे थे, जाने हम
शहंशाह कौन से घूम रहे हैं इस दुनिया में? शहंशाह जी घुटने के बल आ गए, एक निमोनिया के दौर से गुजरे, सारी शहंशाहपन चली गई, घुटने के बल चर्च में। खुदावन ने मिनट से पहले सीधा किया। अब खुदावन अपने तरीके से सीधा करना चाहते हैं और आप हायल बने ऐसे के साथ फेलोशिप करके, तब खुदा चपत तुम्हारे मारेगा। ये मैं पहले से बोल रहा हूं आपसे। इनफैक्ट ऐसे केसेस के साथ डील करने की प्रॉपर गाइडलाइंस ऑलरेडी मैसेज में है, लेकिन शायद फॉलो नहीं हुई। कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन। इसमें कोई फेवर नहीं चलता। इसको मैं छिपा जाऊं, इसको मैं छिपा जाऊं, सही हो जा, नहीं हुई भैया अगले स्टेज पे 2 को लेके जाओ। मैं तो नहीं जाता 2 के लेके, मैं एक ही में रहूंगा, अपने सालों साल निकाल दूंगा ऐसे ही, सही हो जा, सही हो जा, और वो सही होके दे नहीं रहा। खुदावन का तरीका था, वो तुम्हें सालों साल पहले तुम्हारा बेटा या बेटी जो ऐसा किस्म का केस है सही करके लाइन पे ले आता खुदावन। सालों साल पहले तुम्हें इतना रोने की और दांत पीसने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने तब दिखाई दया, सही हो जा, सही हो जा, नहीं हुआ सही तो अब 2 को लेके जा, 2 को लेके जा तो औरों को पता लगेगा हमारे घर में क्या हो रहा है। नहीं, हमारे घर की पोलें खुलेंगी दूसरों के सामने। एक चीज याद रखना, जब गुनाह को ढांपोगे गुनाह पस की तरह फैलेगा। अगर चीरा लगा दोगे तो पस निकल जाएगा। सही हो जा, सही हो जा, अब वो सही हो नहीं रहा, चपत मार लिया, ये कर लिया, एक दिन ड्रामा हुआ, पुलिस भी आ गई घर, सब हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। उसका तो जी करदा भाई, जी करदा, समझ में आ रही है आपके? वो तो अपनी दुनिया वाले नाच रंग में है पूरा। आप समझ रहे हैं? जब ऐसी चीजें हों, अब आपकी बात समझ में आएगी। आपको इतना सफर करने की जरूरत नहीं थी। मेरा बेटा मेरे हाथ से जा रहा है, अरे कोई नहीं जाएगा। जितने तूने मुझे दिए मैंने एक को नहीं खोया, लेकिन एक पाने का एक तरीका है, वो थोड़ा उल्टा तरीका है। अब 2 को लेके जाओ, बेटा सुधर जाओ। उन्होंने हेकड़ी अपनी बंदी करी, कोई बात नहीं, पहला शख्स मैं बनूंगा चर्च के सामने बताने वाला या बताने वाली। और तब पास्टर और चर्च मिलके शैतान के हाथ इन्हें सौंपेंगे। यानी कि अब हम भी जो घर में रहते हैं, इनके साथ हमारी फेलोशिप बंद। अपना जीवन जो जीना है जियो, अपनी डबल रोटी खुद खरीदो, लाओ, जो करना करो। समझ में आ रही है आपके? हम तुमसे बात नहीं करते। यू हैव टू एक्ट, आपको काम करना पड़ेगा। जैसा नबी ने बताया। कुछ दिनों के बाद अगर वो खुदा का बच्चा हुआ, कुछ होगा, लिख के दे रहा हूं 100%, कुछ होगा। एक खुदा का डंडा पड़ेगा, सीधी आम शब्दों में, और वो डंडा ऐसा तगड़ा पड़ेगा, हाँ वो इतना होगा बस कि इस टेढ़ी लकड़ी को सीधा कर दे। और तब ये क्रॉल करता हुआ आएगा, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मैं अपने रास्तों से फिर रहा हूं। जब खुदावन किसी को सही करे, ओ ब्रदर, वो तो सही तरीका क्या बड़ी चीज होती है। क्या भाई बिली पॉल के साथ नहीं हुआ? क्या भाई ब्रैनम ने अपने बेटे को घर से नहीं निकाल दिया? क्या उनका बेटा उनसे जीवन भर खो गया? हाँ, मेरा बेटा बिली, जिसके लिए मैं दूध गर्म करता था, बढ़िया मैसेज, मेरे साथ है, बुरा लग रहा है बिली, लेकिन ये क्या करें, ये तो जिंदगी में कोई नहीं, मैं चुप दबा जाता हूं। नहीं नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से। और जब जा रहा था तो ये कहा, एक दिन तो मैं वापस लेके आऊंगा, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। शायद उन्होंने जानते थे, देखा उन्होंने, मैं एक दिन तुम्हें वापस लेके जरूर आऊंगा। एक दिन वो बीमार पड़े। यूजुअली देखा गया
ऐसा फिर शख्स बीमार पड़ता है या कुछ होता है, जो ऐसा डंडा उसे वापस लाइन पे मिनट से पहले लेके आए। लेकिन ऐसे टाइम पे आप अपनी दया ना दिखाना, खुदा को अपना काम करने देना, तब तो रिजल्ट पाओगे। नहीं तो जिस समस्याओं में घूम रहे हो घूमते रहो। बहुत सी चीजें बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि मैसेज भी आगे बढ़ने का, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं और यही पॉइंट फिर से आएगा, कुछ और बातें भी आएंगी। सुनिए जरा। About a month from then he was stricken down with pneumonia. एक महीना लगभग तब से गुजरा और वो न्यूमोनिया से पीड़ित हो गया। And the doctor said, और डॉक्टर ने कहा there's not a chance in the world for him to live. दुनिया में एक भी मौका नहीं कि वो जी पाए। देखो बीमारी भी क्या लिख के आ रही है आज हिब्रू के मैसेज में, निमोनिया। और ये कौन सा जमाना चल रहा है? वही कोविड वाला। और निमोनिया में क्या है? फेफड़े मतलब काम करना बंद कर जाते हैं, सांस नहीं आती। जब पहुंच गए आईसीयू, जब बुरे हाल, और डॉक्टर ने कहा पता नहीं, हमें लगता नहीं कि बचेगा। अब एकदम सेट लाइन पे मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं। अब कहां गया वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम? अब कहां गया वो आंखों में औरत को देखना? खत्म। आईसीयू ने मिनट से पहले सही तस्वीरें दिखा दी। समझ में आ रही है आपके? थोड़ी टू 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 आईसीयू की मशीनों की, इंजेक्शन, सांस का फूलना, वेंटिलेटर, मिनट से पहले लाइन पे ले आया और कहा कान पकड़े, मैं इधर देखूंगा भी नहीं। अब यही चाहते थे और खुदा ने किया। और ठीक होके संडे को चर्च पहुंचे, सब मिले होंगे, रोए होंगे, हमारा खोया हुआ भाई वापस आ गया। ये मतलब हमेशा के लिए शैतान के हाथ सौंपना नहीं था, उसके भलाई के लिए कि वो सही होके लौट के आए, जैसे खुदा ही सही करेगा। समझ में आ रही है आपके? कई ऐसे आपको मिल जाएंगे शहंशाह, घरों में रहते हैं शहंशाह, जो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते। ऐसे शहंशाहों को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। आपकी समझ में आ रही है? हमने, मैं कहूंगा, बड़े सीरियसली इस चीज को फॉलो नहीं किया। हां, कुछ गाइडलाइंस थी, करते रहे, लेकिन भाई देखिए मैसेज है, हर चीज सिखाता है। तो अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो क्या टेढ़ी लकड़ियां सीधी नहीं होंगी? जी, खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु ही सबको सही करने वाले हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आगे मैं थोड़ा पढ़ूंगा। Amen. If something goes wrong in the church, अगर कलीसिया में कुछ गड़बड़ हो जाए, if it's amongst the congregation, अगर इस सभा के बीच में हो, each one of you brothers that's on the deacon board, one of you deacons don't behave, और हर एक भाई जो आप जो डीकन बोर्ड में है, अगर आप में से कोई डीकन जो है वो बिहेव सही ना करे, the other deacons come and have a meeting, बाकी के डीकन आए और एक सभा करें, try to reconcile the brother, उस भाई को सही स्थिति पे लेके आए, tell him what he's doing, उसे बताएं कि वो क्या गलत कर रहा है, or one of you members, या आप सदस्यों में से एक कोई, whatever you are, जो कुछ भी आप हैं, then it's to be brought before him. तब वो बात उसके सामने लाई जाए। If he won't do it, अगर वो ऐसा ना करे, then come tell the pastor. तब आइए और पास्टर को बताइए, Then he's loosed from the church. तब वो कलीसिया से आजाद हो जाता And है। then let him be as a heathen and a publican. तो वो केवल एक मूर्ति पूजक और एक महसूल लेने वाले की माने ठहर जाए। Then watch the Lord go to work on him. तब देखिए प्रभु कैसे उस पे काम करना चालू करेंगे। That's when he comes back to himself. आप देखेंगे ये वो समय होता है जब वो अपने आपे में आता है, That's when he goes to crawling in. फिर वो रेंग के घुटनों पे आके वो अंदर आएगा। But we try to do it ourselves. पर हम तो खुद करने की कोशिश करते हैं। You know, try to do everything the way we should do it. आप पाएंगे हम उस तरीके से करना चाहते हैं जैसा हमें करना चाहिए, Now we never make a success. और हम कोई सफल नहीं हो पाते। सच बात है ये. यस। Now this Melchizedek, the king of Salem, अब ये मलकीसेदेक जो कि शालेम का राजा था, prince of the priest of the Most High, met Abraham and blessed him. जो परम प्रधान खुदा का याजक
अब्राहम से मिला और उसे आशीष दी and gave him his tithings. और उसे अपना दसवांश दिया। Abraham did. अब्राहम ने किया And he was the king of Salem. और वो सालेम का राजा था And he brought out bread and wine, और उसने रोटी और दाख मधु रख दिया, the communion, प्रभु भोज, and gave it to Abraham after the battle, और युद्ध के बाद अब्राहम को दिया after the man had been won over. जब वो आदमी जीत चुका था। Now all wars, as I say, are fought for principles. अब सारी लड़ाइयां जैसा मैं कहता हूँ सिद्धांतों के कारण पे ही लड़ी जाती हैं। Now if you have a little war in church, अब अगर आपके कोई ऐसी छोटी लड़ाई हो कलीसिया में, it must be the right principle. जरूरी है कि ये सही सिद्धांत हो। You must be fighting for the right thing. आपको सही चीज के लिए लड़ना चाहिए And each member of the church is supposed to do that. और कलीसिया के हर एक सदस्य को इस काम को करना है। Now this teaching is for the church. अब ये शिक्षा कलीसिया के लिए है। That's what we are here for. यही चीज है जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। That's what I'm standing here for. इसी चीज के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। That's what God's word is for. इसी के लिए तो खुदा का वचन दिया गया है। It's for the church. ये कलीसिया के लिए है। Don't never let nothing hinder this church. कोई भी ऐसी चीज कभी ऐसा ना हो कि इस कलीसिया को रोके। If it does, you are guilty, each one of you. अगर वो ऐसा करे तो आप सब उसमें दोषी ठहरेंगे। And you in your different churches, और आप जो अपनी विभिन्न चर्चों में हैं, if something's going wrong in your church, अगर कोई चीज गलत हो रही है आपकी चर्च में, you are guilty तो आप उसके दोषी हैं, because you are the overseer of that church. क्योंकि आप उस कलीसिया के अगुए हैं। It ain't up to the pastor. ये पास्टर के ऊपर नहीं आयद होता। It ain't up to the deacon board. ये केवल डीकन बोर्ड पे ही आयद नहीं होता, It's up to you, पर ये आप पे भी आयद होता है। you individual, आप जो व्यक्ति विशेष हैं, to go to that brother कि आप उस भाई के पास जाएं and see if you can have him reconciled. और देखें कि आप उसको सही समझ पे ला पाएं। If not, अगर ऐसा नहीं है then take 2 or 3 with you. तो 2 या 3 को अपने साथ ले जाएं, Then come back. तब वापस लौट के आएं। If he won't hear that, अगर वो उसको ना सुने, tell it to the church. चर्च को बताइए। Then he's dismissed from the kingdom of God. फिर वो खुदा के राज से बर्खास्त किया जाता है। God said, खुदा ने कहा, if you dismiss him there, I'll dismiss him here. अगर आप उसे यहाँ बर्खास्त करते हैं तो मैं उसको वहां बर्खास्त करूंगा। If you have went through this order, अगर आप इस क्रम में होके चलें, then he'll turn the devil loose to him तब वो शैतान को उस पे छोड़ देगा for the destruction of his flesh. ताकि उसका शरीर भी बर्बाद हो, And then he'll come back. और तब वो वापस लौट के आएगा। That's right. ये बात ठीक है। That's the way to make him come back. ये वो तरीका है उसको वापस लाने का। If he is a child of God, he will come back. अगर वो खुदा का बच्चा है तो वो वापस लौट के आएगा। If he isn't, अगर वो नहीं है, why? He'll go on. हाँ, वो अगर चलता रहेगा फिर तो, And then the devil will send him on to his eternal place. और फिर शैतान उसे वहीं पहुंचा देगा जो उसका अनंत स्थान है। Have you understood this much? क्या आप इतना समझ गए? Now the motives of it, if you just get it in for somebody, then that's different. हाँ, अब जो मंशाएं हैं उसका अगर आपको समझ में आया किसी के लिए तो ये फर्क होगा। I hope you have understood this now. मैं आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया है। What is the church order regarding such things? इन चीजों को लेके कलीसिया क्रम क्या है? I hope it's clear with you. मैं आशा करता हूँ आपके लिए स्पष्ट होगा। Very beautiful teaching, बहुत ही खूबसूरत शिक्षा है which is to deal with the straightening of lives in the church. जिनका संबंध जीवनों को सीधा करने से है कलीसिया के लिए। It doesn't only fall in the purview of the pastor ये केवल दायरे में या आए जिम्मेदारी पास्टर की नहीं है or the deacon board. या डीकन बोर्ड की नहीं है, He said it's up to you. पर वो ये कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है। When you saw the wrong, जब आपने गलत को देखा, immediately you start working. एकदम से आपने काम चालू कर Not दिया। spreading it, उसे फैलाया नहीं, but directly talk with him. पर सीधा सीधा उससे बात करिए। If he gets corrected, अगर वो सुधार ले ले, fine. ठीक है। If not, अगर नहीं, take 2 with you. तो 2 को अपने साथ लेके जाएं। Still not corrected, अगर अब भी सुधार ना ले, then bring it to the pastor फिर इस बात को पास्टर के सामने लाइए, before the whole church पूरी कलीसिया के सामने, and give him some time as a warning. और कुछ समय दीजिए एक चेतावनी के रूप में। If he repents, fine. अगर वो तौबा करे तो बात ठीक है, If he doesn't, और अगर ना करे then turn him loose to the devil. तो फिर उसे शैतान के सुपुर्द सौंप दीजिए। And then when that happens, और तब जब ये होता है, if he is a child of God, अगर वो खुदा का वास्तविक बच्चा है, he will return back. वो वापस लौट के आएगा, And if not, और अगर नहीं है, devil will send him to his eternal destination. शैतान उसके अनंत गंतव्य पे भेज देगा। That's what the prophet said, and I have read it. ये भी बात नबी ने कही है और मैंने इसको पढ़ लिया है। That's one point. ये एक बात है। So that's a church teaching. तो ये कलीसिया एक शिक्षा है। And why I'm preaching it,
और क्यों मैं इसका प्रचार कर रहा हूं? Not just because I'm preaching Hebrews message, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बस इब्रानियों का संदेश ले रहा हूं, but we mean what we preach. पर हम मतलब रखते हैं उस बात से जो हम प्रचार करते So हैं। now note it down in your diaries, and from today onwards, start following this. तो अब आप इस बात को अपनी डायरियों में नोट करें और आज से इस बात को फॉलो करना चालू कर दें। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। Now we come to the next point. अब हम अगले बात पे आते हैं। Now the motives of it. अब उसके उद्देश्य, If you just get in for somebody, then that's different. अगर आप उसको किसी कारण से किसी के लिए आते हैं तो ये बात फर्क है। But if the man is guilty, पर अगर आदमी वास्तविकता में दोषी है and Lot had went down and had backslid, और लूत जैसे चला गया था वहां पर और पिछड़ गया था, though he was a Hebrew, जबकि वो इब्रानी था, he had went down and was backslid. वो वहां चला गया था पीछे नीचे और वो पिछड़ गया था। He was in grace, but he had fallen from it. वो अनुग्रह में पहले था पर वो उससे गिर And चुका when he था। went out, और जब वो बाहर निकल के गया and Lot was saved, और लूत बचा लिया गया, don't ever think that Lot wasn't saved. ये मत सोचिए कभी कि लूत बचाया नहीं गया। बचा नहीं था. He was. Because all the time when he was in the wrong place, क्योंकि हमेशा जब वो गलत जगह पे था, the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily. बाइबल ये कहती है कि जो सदोम के पाप थे उसके धर्मी प्राण को हमेशा परेशान करते थे। So you know that's the scripture that he was saved. तो आप पाते हैं ये पवित्र शास्त्र है कि वो बचा लिया गया। Now his flesh was doing one thing, अब उसका शरीर एक काम कर रहा था and what was his end? और उसका अंत क्या हुआ? He brought more disgrace. वो और डिसग्रेस लेके आया। His wife turned to a pillar of salt. उसकी पत्नी जो है आग का नमक का खंबा बन गई। He had children by his daughters. उसके पास बच्चे हो गए उसी की बेटियों से। So you can see what a disgrace it brought. तो आप पाएंगे कितना डिसग्रेस लेके आया है, ये दयनीय स्थिति लेके आया। Because he had fallen from grace क्योंकि वो अनुग्रह से गिर चुका था and never restored himself back again. और फिर उसने अपने आप को उस स्थिति में बहाल नहीं किया And God had to take him out of the earth. और खुदा को उसको पृथ्वी पे से बाहर निकालना पड़ा। But still he was a fallen brother. तो भी वो एक गिरा हुआ भाई था। And Abraham done all that he could do to bring him back again. और अब्राहम ने सब कुछ करा जो कुछ वो कर सकता था कि उसको वापस लेके आ पाए। And the spirit was in Abraham is the spirit of Christ that's in the church today. और जो आत्मा अब्राहम में था वही आत्मा है मसीह का जो कि कलीसिया में आज पाया जाता है। No matter what the brother's done, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज भाई ने क्या किया है। you'll do all you can to bring him back into the fellowship of Christ again. आमेन। आप सब कुछ करेंगे जितना हो सके कि वापस उसे मसीह की संगति में लेके आ पाए। No matter what he's done, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या किया है। you will try hard. आप पूरी कोशिश करेंगे। आपकी समझ में आ रही है? आमेन। आप कहेंगे ब्रदर देखा नबी तो कह रहे हैं उसको वापस लेके आओ। अगर सही खानों में चीजें प्लेस आप ना करें, आप बातें ब्रदर समझेंगे नहीं। यस। अपने भाई के लिए जो चर्च में आ चुका, अगर वो बिछड़ता है, उसे वापस लाने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। आमीन। तब तक जब तक कि कलीसिया उसे शैतान के हाथ ना सौंप दे, तब खुदा लाएंगे उसे। यस। दूसरी कैटेगरी, एक हमारा लॉस्ट भाई जो दुनिया में फंसा हुआ है, हमारी एक लॉस्ट बहन जो दुनिया में आज भी फंसी हुई है, जिसे हम लाते हैं मन फिराव तक ताकि वो बपतिस्मा ले। आमेन। ये भी तो एक दौड़ना है। क्या इसके लिए हम बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करेंगे? यस। बिल्कुल करेंगे, आमेन। ताकि अपने खोए हुए भाई को जो दुनिया में खो चुका है वापस लाएं। ये खोना वो वाला खोना है जो अभी मैसेज को जाना भी नहीं। समझ में आ रही है आपके? आमेन। ये वो वाला खोना है जो अभी मैसेज को जाना भी नहीं। आप गए और उसे बचा के लाए। अब्राहम एक्चुअली इसी की तस्वीर है। आमेन। अपने खोए हुए भाई को वापस ला रहा है। बाद में उस भाई ने क्या किया उसकी अपनी बात है, लेकिन अब्राहम ने पूरी मेहनत करी। सच्चाई है। आमेन। दूसरा, एक है वचन में आ गया, लेकिन वचन को जानने के बाद उसने गलत काम किया और वो दुनिया में चला गया। उसको लाने के पर एक ऑर्डर है जो अभी पढ़ के सुनाया। उसमें आपकी मशक्कत कहां तक है? जब तक कलीसिया उसे शैतान के हाथ ना सौंप दे। अब एक और चीज बोलूंगा, नबी कह रहे हैं ट्राई हार्ड।
उस ट्राई हार्ड में हर चीज को सालों साल अपने तक मत रखना। यस, ऑर्डर को जल्दी फॉलो करो ताकि जल्दी उसका उद्धार हो सके। कुछ समझ में आ रही है आपके? हर चीज सही खाने में रख के समझने की है। अगर सही खानों में नहीं रखेंगे मेरे भाई बात, तो जाने कौन सी बात को कहां मिला देंगे। यह अब्राहम जो लूत को बचा रहा है, तस्वीर हमारी कौन सी है? अपने खोए हुए भाई को जो दुनिया में फंसा है, उसे हम ला रहे हैं। थोड़े पैराग्राफ्स पहले मैंने क्या पढ़ के सुनाया, जो दुनिया में है, सोसाइटीज में मूव कर रहा है, स्मोक कर रहा है, दुनिया में है, उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। सच बात है, अभी भी हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो दुनिया में पड़े हैं। अभी पिछले सैटरडे करीब 52 बपतिस्मे हुए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी कई और हैं जिन्होंने मसीह को नहीं जाना। तो क्या हम अब्राहम का नेचर यानी मसीह का नेचर में होते हुए उनके पास ना जाएं? उसमें कभी कभी कठिनाइयां भी उठानी पड़ती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसकी परवाह नहीं। हम तो युद्ध जीतेंगे और अपने भाई को वापस लेके आएंगे। सच्चाई है, यह है वो तस्वीर। लेकिन जो ऑलरेडी बपतिस्मा लेके भाई बन चुका, अब अगर वो बैकस्लाइड होके जा रहा है, आप मकदूर भर कोशिश करेंगे। कब तक? जब तक कलीसिया उसे शैतान के हाथ ना सौंप दे। कलीसिया ने जब सौंप दिया, अब आप बरी हैं, आराम से ठंडी सांस लेके बैठिए, इंतजार करिए कुछ दिनों का। सच में अगर वो खुदा का बच्चा या बेटी होगी, खुदा उन्हें घुटनों के बल चर्च लाएगा वापस, लाएंगे वापस। कुछ आपकी समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू। खुदावन आपको आशीष बरकत दें। सो आप हर चीज को आई थिंक यू कैन प्लेस इन द राइट सेक्शन। अब मैं सोचता हूं आप हर एक चीज को सही खाने में रख पाएंगे। Now we want to notice here now again, अब हम चाहते हैं कि हम यहां पर फिर से गौर करें, as we go on with this lesson of this Melchizedek, जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन में जो कि मलकीसेदेक का है। this great priest of Salem ये महान याजक जो कि सालेम का है and the possessor of heavens and earth, और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। now being first without father, without mother, अब पहले बिना पिता के, बिना माँ के, without descent, बिना वंशावली के, having neither beginning of days nor ending of life, ना ही दिनों का शुरुआत ना ही जीवन का अंत, but was made like unto the Son of God, abideth a priest continually. परंतु खुदा के पुत्र सरीखा बनाया गया था, एक याजक के रूप में हमेशा बना रहता है। May God give us grace to continue on the next time. काश खुदा हमें अनुग्रह दे कि हम इसको आगे बढ़ाएं अगली दफा। I think you have understood certain things today. मैं आशा करता हूँ आपने कुछ खास बातों को समझा होगा। Very आज। important. बहुत महत्वपूर्ण। आमेन। And may God give you and I a grace to follow it. और काश खुदावन आपको और मुझे अनुग्रह दे कि हम इसको फॉलो कर पाएं। God really आमेन। bless you. Let's pray. खुदावन आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज शाम के विजिटेशन के लिए, इन प्यारी महान बातों को समझाने के लिए, कैसे चर्च को गुनाह के साथ डील करना चाहिए। धन्यवाद हो। पढ़ा है, सुना है, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया। प्रभु तौफीक दें कि अब हम अपनी मशक्कतों से हटके इस रूलिंग पे आ सकें, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में अद्भुत काम करेंगे। और खुदावन हमारे अपने ही लोगों को जो वचन से बरगिश्ता हमें कई बार दिखते हैं, उन्हें फेर के लाएंगे। दुआ है प्रभु जी कि आप हमारे तमाम भाइयों बहनों के साथ हों, ये वचन जो पढ़े गए, सुनाए गए, जीवनों में काम कर सकें। आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम।